अपने शरीर के ऊपर मेहनत करना पड़े, तो कितने लोग राजी हैं? The simplest thing is to pop a pill, right? Does everybody agree with me? जो एलोपैथी आपको देता है, popping a pill, and that's the end of the story. But is it the end of the story? Absolutely no. ये आपको दूसरे प्रॉब्लम पे लेके जाता है जो आपके पास प्रेजेंटली नहीं है. That are the side effects of allopathy medicine. Temporarily दर्द ठीक हो गया, so smiles are back on the face. But जो हमें उसके लिए प्राइस देना पड़ रहा है, is it worth it? How many people feel it's worth it that we have to pay such a heavy price for a temporary solution? वो भी आपको permanent solution नहीं मिल रहा है. Okay, so Tabassum ma'am says no, and we need to now understand how the body works. So if I have your permission, I would like to share the screen for you to know more about how the human body works, और आप क्या कर सकते हैं to get out of your current problems. Do I have your permission? Give me a quick thumbs up, please. Thank you so much. Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. यानी कि musculoskeletal problems as well as the neurological problems. This is an online therapy for both. Namaskar, I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. Now, I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say the structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness, a profound way of addressing the aspects of a human body. Let's come to the very vital question, who is this webinar for? For people who are tired of temporary treatments and are looking for natural and permanent solution. यानी कि आप खुद से अपने शरीर का ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं and can come out of your current problems. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from pain and medicine. Swamiji will talk about the Ashta Sharir, yani ki the 8 softwares in our body.
सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर, प्रमाण शरीर, संख्य शरीर, prakriti sharir, vikriti sharir. So when we talk about the neuromuscular health issues, we are mainly talking about the prakriti and the vikriti sharir. Prakriti yani ki the natural rejuvenation factor of our body. Vikriti yani ki degenerative factor of the body. So the degenerative factor of the body is a very, very common thing. Of course, as we age, especially among the women, as they enter their menopause, the downside starts or the degeneration is seen very, very naturally in their body. पर क्या आपको मालूम है कि ये जो degeneration हो रहा है, ये तो हर वक्त ही हो रहा था. And the pain that you are feeling now, it started 20, 25 years back. But now it surfaces and is calling for your attention. Why? Because the imbalances are very, very evident between the Prakriti and the Vikriti Sharir. So Ashtanga Chikitsa can heal. Of course, the list goes on and on. But ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम अपने पार्टिसिपेंट्स में देखते आए हैं for young as 25 to aged as 60 plus. Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issues, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder or drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy or the nerve issue. तो इसमें से कुछ कुछ चीजें न्यूरो इश्यूज भी हैं and most of them are musculoskeletal problems. Now let's move on. Some of the very, very chronic problems which Ashtanga Chikitsa can heal: muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome, spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN, Alzheimer's disease or dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. Let's hear from Swami Raj Vibhuji how we can come out of our current problems. Thank you so much for listening to me patiently. I will now tell you how we are proceeding in the webinar. इसके बाद आप सुनेंगे recorded video of Swami Raj Vibhuji explaining how the human system works and how you can come out of your current problems. Then we will have a live testimony who's been a participant of Ashtanga Chikitsa and how he or she is benefited by it. After that, we will be sharing the program details. And last but not the least, Swami Raj Vibhuji himself will be joining us live to take up your questions regarding health. So don't delay. लिख डालिए आपके सारे problems जो आपको परेशान कर रहे हैं in the chat box along with your name and number. Thank you so much once again. Over to Anilji to share the video. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose
What is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक knee injury किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, and he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों हो जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहाँ पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, porous हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors. 8 कारण हैं
because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtanga चिकित्सा. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा, to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस scale में उस समय problem हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, strong करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtanga Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in Kumbhak Paddhati, in Kumbhak Kalachar or Ayurved Kalachar, in Yoga Kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. लेट्स टेक एग्जांपल. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं, आप लेना नहीं चाहते हो. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation.
Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. सो ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो आप ना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. यू होल्ड योर ब्रेथ. इफ देयर इज अ बैड साउंड, यू क्लोज योर ईयर्स. आप नहीं सुनना चाहते इसको, यू होल्ड योर सेंसेस. सो होल्डिंग योर ब्रेथ, होल्डिंग योर सेंसेस इज कॉल्ड एज कुंभक. इसको नाम दे रहे हैं हम. सो इट इज नॉट जस्ट ब्रेथ होल्ड, इट इज द होल्ड ऑफ सेंसेस ऑल्सो. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, all the five senses, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है? तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short.
एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया, विल यू गेट जॉइंट प्रॉब्लम इन वन ऑफ द शोल्डर्स? आपको एक शोल्डर में जॉइंट प्रॉब्लम आएगी ना? सो इफ यू हैव वन लेग अ लिटिल लॉन्गर देन द अदर लेग, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, इफ यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट इवन वॉक स्ट्रेट. द वे वी आर सिटिंग, द वे वी आर लिविंग आवर लाइफ, वी डोंट इवन सिट स्ट्रेट. कितने लोग सीधा बैठते हैं? यू ऑलवेज टेक अ बैक रेस्ट, इजंट इट? सो देयर इज ऑलवेज, देयर विल बी, इफ यू डोंट यूज योर बॉडी proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned, we call it dharan. Your chest can get disaligned, आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है, that part is called as caudy. And your legs can get disaligned, आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है, that is called as nalle in the local terminology. Nabhi, kaudi, nalle. Now if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा ना, आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of caudy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड, बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू, ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो. सांस रोकी आपने. Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you, that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest, अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class.
हम क्लास में सिखाते हैं। द फोर्थ एस्पेक्ट प्रमाण शरीर, प्रकृति विकृति संख्या प्रमाण। चौथे पे आ गए हम, प्रमाण। प्रमाण मीन्स डेंसिटी, इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी। इसी को धातु भी कहते हैं, वी कॉल इट धातु। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं। लाइक बोन इज वेरी मच डेंस, हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है। योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें। और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स। जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है। पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन, वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है। So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु। 7 different density tissue की है आपके शरीर में। There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं। If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुवनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. बट सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath you are creating an external trigger. Now very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen?
आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं, क्या होगा? व्हाट विल हैपन? यू आर नॉट क्रिएटिंग एन एक्सटर्नल ट्रिगर, अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको, तो कहां जाएगा ये डायरेक्शन, कहां जाएगा? इंटरनली योर हार्ट रेट विल इंक्रीज, आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर, यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the pramana sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए, and there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also, छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells.
इंटरनल एनवायरमेंट साफ बनेगा आपका, तभी देयर विल बी प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम मर्म अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in अष्टांग चिकित्सा, there is a part called as anganyasa and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of this word called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure. Rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't.
No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 64-year-old, 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, a lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now being bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues,
They don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You will feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान ही कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose. In Prana Shakti diagnosis, यही Prana Shakti diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do Prana Shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक module सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira.
Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Praman, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई ये मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड यूल सी योर हेल्थ विल इंप्रूव. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. I would now like to request Anju ma'am to please talk about her journey of Ashtang Chikitsa. Anju ma'am, I will just be putting you on spotlight. Anju Shangari ma'am. Anju. Namaskar ma'am. Swami ji. Namaskar. Yes. मैम आप अनम्यूट करो खुद को प्लीज. आप म्यूटेड हो. हाँ मैम, अभी आप अनम्यूटेड हो गए. हाँ जी, थैंक यू. मैंने 19 जून को ज्वाइन किया था ये प्रोग्राम, क्योंकि मैंने एक दिन FB पे ऐसे ही ऐड देखी, वहाँ किसी का फीडबैक था. जनरली मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ ऑनलाइन पे, लेकिन अंदर से ही शायद मुझे ठीक होना था, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया, फीस भी पे कर दी एंड बिना किसी ट्रस्ट के, बिना किसी उम्मीद के मैंने ज्वाइन किया. लेकिन जो भी किया मैंने दिल से किया और रेगुलर किया. उसके बाद मुझे 1 हफ्ते के बाद जो मेरी इतनी एक्यूट पेन होती थी कि मुझे ये बैक साइड में शोल्डर के, मुझे करीबन 26-27 साल से सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस का, और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का भी. मेरी टेनिस एल्बो भी है एंड रिस्ट में भी प्रॉब्लम है. मैं कुछ उठा भी नहीं पाती थी चम्मच से, ज्यादा देर तक कोई हैवी काम नहीं कर पाती थी. तो 1 हफ्ते के बाद ही मेरा पेन कम होने लगा और अब 3 महीने हो गए हैं. तो मुझे ऐसे लगता है कोई जादू की छड़ी घुमा दी हो. मैं सारे मूवमेंट्स कर पा रही हूँ अपने. ये इस समय अपने हाथ में मैंने मोबाइल फोन भी पकड़ा हुआ है ऐसे, मेरी रिस्ट में और मेरी एल्बो में पेन नहीं है. तो मैं इसके लिए स्वामी जी के लिए बहुत बहुत उनका हमेशा आभारी रहूंगी और उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस कोर्स को डिजाइन किया ऐसे कि ऑनलाइन भी हम लोग कर पाए. जो भी डाउट्स हुए क्लियर कर दिए गए टीम के द्वारा, और मेरी सारी जो भी पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी सारी बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ा. ऐसा नहीं कि 100% में रिकवर हो गया, मैं करती रहती हूँ, मैं ठीक रहती हूँ
और अब ऐसे आदत से लग गई है। किसी दिन मजबूरी में कभी मिस हो जाता है तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कुछ छूट गया और बहुत बेचैनी सी रहती है, तो मैं फिर टाइम निकाल के थोड़ा सा उसका पार्ट कर लेती हूँ। Thank you so much, Anju ma'am, for sharing your journey of Ashtang Chikitsa. Now I would like to request Nitin sir to please share his journey of Ashtang Chikitsa. We have two Nitins, Nitin Kapoor ji हैं और Neha, Nitin please Pawar. specify which Nitin sir, Kapoor or Pawar? Neha, are you there? कोई बात नहीं, दोनों को अनम्यूट कर देते हैं. Hello. Yeah, Nitin Hello. Kapoor sir. Yeah. Good evening, everybody. Good evening. Can you hear me? Yes, I can hear you. Disturbance is there. Hear you, sir. We cannot hear you. Just a moment, ma'am. On the back. Just a moment. I'll give you a call back. Just a moment. Sadi, we can take him up later on. Let's start with the move ahead with the webinar. Okay. नितिन जी आपसे Nitin बाद में sir, बात कर लेंगे तब तक. हाँ जी. Okay. Hello. नितिन जी Sir, डिस्टर्बेंस है. आपसे थोड़ी देर में बात कर लेंगे, तब तक आप अपने जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज नहीं होगा तब तक शायद वहां पहुंच चुके हों. हाँ जी. ठीक है, थैंक यू. Thank you. So now Anilji will be sharing the program details with us. So over to Anilji. Yes, just give me a few seconds. I'll just share my screen. रचना जी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ. Okay. All right. So let's get to know the program details. हम जल्दी से program details जान लेते हैं. कि क्लासेस की कब होंगी, टाइमिंग क्या रहेगा, फीस क्या होगी, ये सभी डिटेल्स हम जानेंगे. First of all, this is a guided program which is conducted online by trained कुंभक mentors. ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो जूम ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस के थ्रू कंडक्ट किया जाता है. जैसे अभी आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं जूम एप्लीकेशन के ऊपर, इसी तरीके से आपकी क्लासेस भी रहेंगी. आगे बढ़ते हैं. There are 3 modules in the program, module 1, 2 and 3, or we can call them वात पित्त and कफ module. इस प्रोग्राम में 3 मॉड्यूल रहेंगे, वात पित्त and कफ मॉड्यूल. ड्यूरेशन ऑफ ईच मॉड्यूल इज 21 days और 3 weeks. हर मॉड्यूल का ड्यूरेशन होगा 21 दिन का, यानी कि 3 हफ्ते का. So 3 into 3 makes it 9 weeks. टोटल जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन, अवधि जो है प्रोग्राम की, वो 9 हफ्ते की है. If you see here, duration is written 9 plus 1, making it 10 weeks. मैंने तो अभी बताया था कि 9 हफ्ते का है, बट why 1 week extra? एक एक्स्ट्रा वीक क्यों इसमें जुड़ गया है, ये भी हम थोड़ी देर में जान पाएंगे. There will be 2 live classes every week, out of which one will be the learning class or the main class, and one will be the mentoring or the practice class. हर हफ्ते 2 लाइव क्लास रहेंगी, जिसमें से एक मेन क्लास कहलाती है और एक प्रैक्टिस क्लास कहलाती है. इसके बारे में हम समझेंगे कि इसमें फर्क क्या है. What are the next step? आगे क्या करना है आपने? फर्स्ट स्टेप इज टू पे द प्रोग्राम फी. सबसे पहला जो स्टेप है वो प्रोग्राम फी पे करना है, और एक स्पेशल प्राइसिंग है फॉर पीपल हु आर हियर अटेंडिंग इट लाइव. जो लोग अभी लाइव अटेंड कर रहे हैं, स्पेशल उनके लिए प्राइसिंग भी है हमारे पास. आफ्टर दैट यू फिल द पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म.
उसके बाद आपने एक पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म भरना है, एंड देन यू स्टार्ट योर क्लासेस स्टार्टिंग विद मॉड्यूल 1। उसके बाद आप क्लास शुरू करते हैं मॉड्यूल 1 और या माथ मॉड्यूल के साथ। Total classes again, module 1 has 6 classes, 3 learning and 3 mentoring, or 3 main classes plus 3 practice classes. हर मॉड्यूल में 6 क्लासेस हैं और 6 क्लास के अंदर से 3 लर्निंग या मेन क्लास कहलाती है और 3 प्रैक्टिस क्लास। तो टोटल 18 क्लासेस हो जाती है। You get a total of 18 classes, but if you see here, I have written one customization class also. मैंने, आप ये देख पा रहे होंगे कि अब 18 लर्निंग क्लास जमा एक कस्टमाइजेशन क्लास। ये कस्टमाइजेशन क्लास क्या होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो टोटल एंगेजमेंट विद यू बिकम्स 10 वीक्स इंस्टेड ऑफ 9 वीक्स। तो आपके साथ पूरा जो एंगेजमेंट रहेगा कोर्स के दौरान वो 10 हफ्ते का रहेगा। बैच 146 इज स्टार्टिंग ऑन 28 अगस्त विच इज अ मंडे एट 6:30 PM। हमारा 146वां बैच 28 अगस्त सोमवार के दिन 6:30 बजे शाम शुरू होगा। मेंटर या प्रैक्टिस क्लासेस, ये एक्चुअली हम सभी डिटेल्स शेयर करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और जूम चैट के ऊपर। विल शेयर ऑल द क्लास डेट्स, टाइम, एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज इन चैट हियर। What is the class experience like? क्लास में कैसा एक्सपीरियंस रहता है? As you must have understood by now, these are live session. ऐसा कि आप समझ चुके होंगे कि ये लाइव सेशंस रहेंगे, लाइव जूम सेशंस रहेंगे। Mentors watch all the participants. That's the reason you have to keep your cameras on during the class. क्योंकि एक ऑनलाइन प्रोग्राम है तो आपको अपना क्लास के अंदर कैमरा ऑन रखना होगा ताकि हमारे मेंटर्स आपको देख पाए कि आप किस तरीके से क्रिया कर रहे हैं और आपको वहीं पे फीडबैक दे पाए और क्रिया को करेक्ट कर पाए अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हैं तो। All the mentors watch the participants, so you have to keep your cameras on during the classes. Then there will be written instructions in English and Hindi. हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश भी आपको मिलते हैं। सेशन रिकॉर्डिंग और क्लास रिकॉर्डिंग आर ऑल्सो गिवन। सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है और वो आपके कोर्स डैशबोर्ड में अपलोड कर दी जाती है। कोर्स डैशबोर्ड के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे डिटेल में। Then there'll be a lot of extra things like mental practices, unique diet perspective. Mind you, this is not a diet plan. इसमें कोई diet plan नहीं होता है, ये diet perspective मिलता है। What exactly it is? इसमें होता क्या है? You'll get a video from Swamiji in which he talks about and he gives you step-by-step process how to use food in a way so that it supports your body. एक आपको वीडियो मिलता है स्वामी जी से जिसपे वो बताते हैं खाने को किस तरीके से इस्तेमाल करना है या किस तरीके से पकाना है ताकि वो नुकसान ना करे। देन देयर बी सिंपल डिटॉक्स प्रोसेसेस। कुछ डिटॉक्स प्रोसेसेस होते हैं जो आपको इस दौरान सिखाए जाते हैं। एंड देन काफी नॉलेज शेयर की जाती है प्रोग्राम के दौरान। सुहेल जी प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन, प्लीज इस पे स्क्रीन पे ना स्क्रिबल करें। एक मिनट, मैं जरा ये रिमूव कर देता हूँ जो उन्होंने निशान लगा दिया है। ये डिस्टर्बेंस होता है बीच में, तो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स ताकि मैं डिलीट कर पाऊँ। ठीक है, उन्होंने कर दिया डिलीट। गुड, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम फीस वगैरह शेयर करूं, कुछ नंबर्स में शेयर करना चाहता हूं। कुछ इस खर्चे आप देख रहे होंगे यहाँ पे। आई लाइक टू जस्ट शेयर सम एक्सपेंसेस दैट यू मे ऑलरेडी बी डूइंग जस्ट टू मैनेज द डिजीज दैट यू आर इनटू। ये शायद कुछ खर्चा ऐसा कर रहे होंगे काफी लोग, अपनी जो बीमारी है, जो क्रॉनिक एलिमेंट है, जो काफी सालों से चल रही है आपके साथ। ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ ये भी थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। इफ यू टेक इनटू अकाउंट डॉक्टर्स फी, दीज आर ईयरली फिगर्स। ये सालाना शायद इतना खर्चा हो रहा होगा। डॉक्टर की फी शायद 6,000 से 12,000 जा रही होगी साल भर की। If you're into physiotherapy, 12,000 to 30,000 may be costing you, depending on the city you live in and the kind of physiotherapist that you have. And medicines may costing another 15,000 to 30,000 every year. So if you total all of these, 33,000 to 72,000 per year, you may already be spending just to manage the disease that you're into. शायद 33,000 की या 72,000 के बीच में कुछ ऐसा खर्च कर रहे होंगे जो प्रॉब्लम आप अभी फेस कर रहे हैं बहुत सालों से। शायद इस तरीके का कुछ खर्चा चल रहा होगा। एंड वी ऑल नो द साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट मच। हम सभी को पता है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट का काफी दुष्प्रभाव होता है, तो उसकी हम ज्यादा बातें यहाँ नहीं करेंगे। ये मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि नॉर्मली हम कैलकुलेट नहीं करते हैं कि कितना खर्चा, कुछ लोग करते हैं बट हमें अंदाजा नहीं होता है कि कितना जा रहा है।
Because when I announce the fee, that time you realize how economical this Ashtang Chikitsa is, and at the same time, this is the most natural and most economical way to come out of your health issues. ये बहुत ही आसान तरीका भी है और नेचुरल भी है। और एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा सभी के साथ कि ये प्रोग्राम किन लोगों के लिए नहीं है। आई डोंट लाइक टू शेयर हु दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर, सो दैट इट बिकम्स क्लियर ये किन लोगों के लिए, ताकि ये क्लियर हो सके एक्चुअली किन लोगों के लिए। दिस इज नॉट फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ मैजिक पिल एंड वांट रिजल्ट्स टुमारो ओनली। ये मैजिक पिल को स्वामी जी भी काफी बात करते हैं मैजिक पिल, क्योंकि एक आदत बन चुकी होती है हमारी बचपन से। सिंस चाइल्डहुड वी बीन टेकिंग सम काइंड ऑफ अ पिल, कुछ ना कुछ हम एक दवाई ले रहे होते हैं, और एक माइंडसेट बन जाता है, एक दिमाग ऐसा बन जाता है कि कुछ ऐसी दवाई मिल जाए मुझे जिससे मैं ठीक हो पाऊं। तो ऐसा कुछ नहीं है इस प्रोग्राम में, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो मैजिक पिल। और तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, क्योंकि हम एक जो आजकल समय चल रहा है वो एक फास्ट फूड है, जल्दी चाहिए होता है सब कुछ। एक फास्ट फूड का जमाना है, वी आर लिविंग इन अ फास्ट फूड काइंड ऑफ मेंटालिटी। तो एकदम तुरंत हर चीज चाहिए होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाए। एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर नॉट रेडी टू वर्क इन द बॉडी। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो अपने शरीर के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर दिन 80 से 90 मिनट आपको अपने शरीर पर लगाने हैं। आपकी जो क्रियाएं होंगी उसको, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड 80 to 90 minutes every day to do your daily kriyas. So if you do not have this kind of a time, then this program is not for you. And this is not for those who are impatient. We understand and we know when you are into pain, when you are into chronic ailments, the patience goes down. जब बहुत बीमार, समय से बीमार चल रहे होते हैं, तो एक जो हमारा धैर्य होता है थोड़ा कम हो जाता है। बट फिर भी हमें अपनी तरफ से कहना है कि आपको कि कृपया धैर्य रखें जब आपका थेरेपी चल रही है, जब आपकी क्लासेस चल रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट। दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फ्री ट्रीटमेंट और जस्ट सम टिप्स। देखिए, टिप्स की बात करते हैं। अभी तक ना तो वीडियो में स्वामी जी ने कोई टिप्स दी है, ना हम देने वाले हैं। रीजन ये है कि टिप्स से कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। Had it been the case, there are so many thousands of videos on YouTube. तो अगर टिप से काम होना होता तो आप वहां से कर चुके होते, कोई भी आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ चुके होते। तो पहली बात तो ये हुई कि टिप्स के लिए अगर वेबिनार ज्वाइन किया कुछ, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट इनटू गिविंग टिप्स, वी आर इनटू परमानेंट सॉल्यूशंस। दूसरा जो मेन पॉइंट है कि ये फ्री ट्रीटमेंट नहीं है। आपने सभी ने या तो फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट देखा होगा या फिर इंस्टा पे एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि ये फ्री इंट्रोडक्टरी वेबिनार, but many people misunderstand that this is a free treatment. The webinar that you are attending right now live, it's an introduction to Ashtanga Chikitsa, it's an introduction to कुंभक थेरेपी। ये कुंभक थेरेपी का एक इंट्रोडक्टरी सेशन है कि कुंभक के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने सुना नहीं होता है। तो इसलिए ये वेबिनार फ्री है। जो 9 हफ्ते का ट्रीटमेंट है, जो थेरेपी है, जो कोर्स है, वो फ्री नहीं है, वो पेड है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में लोग जब हम बताते हैं, फीस अनाउंस करते हैं, तो वो हमसे लड़ना शुरू कर देते हैं कि आप तो बोल देते हैं फ्री है। वेबिनार इज फ्री विच वी एडवर्टाइज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सो ये क्लियर कर दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलता क्या है, व्हाट ऑल यू गेट इन द प्रोग्राम। The first point is Pran Shakti diagnosis for root cause determination. This alone could be worth the whole fee of this program. सिर्फ अगर इसकी है कि कोई हम इस पे फीस रख पाते सिर्फ इस पॉइंट की, इस डायग्नोसिस की, तो शायद जो पूरे प्रोग्राम की फी है वो इसकी होती। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, व्हाई डू वी से दिस, बिकॉज दिस इज द ओनली डायग्नोसिस विच कैन फाइंड द रूट कॉज। आपकी बीमारी की जड़ क्या है वो पता लगाने के लिए रूट कॉज डिटर्मिनेशन का मतलब यही है। इसकी और बात कर लेते हैं, ये होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। लेट्स टॉक अबाउट इट इन अ स्लाइड डिटेल। First of all, this is an online diagnosis and this is a non-medical diagnosis. ये पहली बात ये है कि ये एक नॉन मेडिकल डायग्नोसिस है और ये एक ऑनलाइन डायग्नोसिस है। अब दोनों ही चीजें बड़ी अजीब सी हैं। Both of these things are very strange because
from childhood, since we took birth, we've been used to going to a diagnostic center, giving a sample of urine, some blood, getting scanned, getting x-rays. बचपन से हमें आदत होती है कि हम डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, वहाँ कुछ हम ब्लड देते हैं, यूरिन के सैंपल्स और जो भी सैंपल वहाँ पे लिए जाते हैं, चाहे स्कैन हो या चाहे MRI हो, व्हाटएवर। तो ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें, राइट? ये होता क्या है फिर? What exactly it is then? You'll get a form, and online form in which you'll be asked to do some experiments on your breath and emotions. आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा और आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने को कहा जाएगा अपनी ब्रेथ, सांस के ऊपर और इमोशंस के ऊपर, और वो नोट डाउन करना होगा फॉर्म में. यू विल बी राइटिंग about your experiment that you did on your breath and emotions in this form. Second, you'll be uploading a selfie photograph, shoulder and above, जिसमें आपका फेस क्लियर दिखता हो. आपको एक अपनी सेल्फी फोटो अपलोड करनी होगी इस प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर्म के अंदर, जिसमें चेहरा क्लियर दिखता हो. बट देयर हैव टू बी नो स्पेक्स ऑन द आईज, एंड इन केस ऑफ लेडीज नो मेकअप आल्सो. बट जो आप सेल्फी देंगे उसके अंदर आपकी आंखों पे चश्मा ना हो और लेडीज के केस में कोई मेकअप भी ना हो. जब ये तीन चीजें स्वामी जी के पास जाती हैं तो वो पता लगा पाते हैं कि 84 फोर्सेस में, आपको याद है कि वीडियो में स्वामी जी 84 फोर्सेस की बात कर रहे हैं. डू यू रिमेंबर स्वामी जी टॉक्स अबाउट द 84 फोर्सेस in the video that we just played? So which force has become weak due to which you have landed in your current health issues, that he is able to find through this diagnosis? कौन सी फोर्स 84 फोर्स में से कौन सी फोर्स वीक हो गई है जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ इश्यूज में आ गए, आप अपनी परेशानी में आ गए हैं? ये प्राण शक्ति डायग्नोसिस होता है. और इसके बाद एक और चीज हम डिस्कस करेंगे कस्टमाइजेशन की, जो मैंने बताया था कि हम जानेंगे वो है क्या. आगे बढ़ते हैं. वीकली देयर विल बी वन मेन क्लास ऑफ 60 to 90 मिनट्स. हर हफ्ते आपकी एक मेन क्लास होगी जो 60 से 90 मिनट की होगी. Why 60 to 90 minutes? 60 is the actual duration of the class. Then we take up questions. Then we take up doubts from the participants. 60 मिनट की क्लास होती है. उसके बाद लोगों के सवाल, कुछ उनकी शंकाएं हैं, कुछ उनके डाउट्स हैं, वो हम लेते हैं. तो उसके अंदर लगभग 20-30 मिनट और लग जाते हैं, इसलिए 90 मिनट का हो जाता है पूरी क्लास जो है. देन वीकली वन प्रैक्टिस क्लास ऑफ 60 to 90 मिनट्स. अंडरस्टैंडेबल. इसमें आप जो मेन क्लास है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके सभी क्रियाएं बताते हैं, दिखाते हैं. प्रैक्टिस क्लास में आप प्रैक्टिस करते हैं, राइट? देन ऑनलाइन कोर्स एक्सेस फॉर 6 months. What is this online course access? Like I told you, all the classes are recorded and uploaded to your course dashboard. आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा और सारी जो आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग है वो वहां पर आपको मिल जाएंगी. तो वो कोर्स एक्सेस का आपको 6 महीने का एक्सेस मिलता है. 6 महीने तक आप वो देख पाएंगे, जो काफी समय है जिसमें आप आराम से सारी क्रियाएं याद कर सकते हैं. दिस इज इनफ टाइम टू लर्न ऑल द क्रियाज बाय हार्ट. सो दैट्स व्हाई 6 months इज मोर देन दैट. Videos of all kriyas done in the class. As soon as you log into your course dashboard, there'll be videos of separate kriyas also. Like I told you that the classes are recorded, but that is of 90 minutes duration. Apart from that, kriyas of separate videos of separate kriyas will also be uploaded in the course dashboard. अलग अलग जो क्रियाएं हैं उनके वीडियोस भी, छोटे छोटे वीडियोस भी कोर्स डैशबोर्ड में आपको मिलते हैं. तो आपको जरूरी नहीं है कि कोई क्रिया देखनी है, कैसे समझनी है, दोबारा से देखनी है आपने, तो आप पूरी 90 मिनट की क्लास की रिकॉर्डिंग देखें. आपने सिर्फ उस क्रिया का वीडियो प्ले करना है और आप उससे समझ जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए अलग अलग वीडियोस भी मिलते हैं. रिटन इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश एंड हिंदी. हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश मिलते हैं, जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं और उससे डेली क्रिया करते वक्त फॉलो कर सकते हैं. देन प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप टू आस्क योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस 6 days a week. संडे हमारे मेंटर्स वीकली ऑफ होता है उनका, तो 6 दिन आप डेली सपोर्ट ले सकते हैं इस क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में. लाइक आई टोल्ड यू, देयर विल बी 2 लाइव क्लासेस एवरी वीक. The remaining 5 days when you're practicing on your own, and if you have any doubt that time, so this is the place you'll be asking your doubts, questions, and sharing, maybe if you're getting good result, or if you're not getting good result, so this is the place where you'll be asking your doubts. आप
कोई भी डाउट आता है क्लास के दौरान, आपका कोर्स चल रहा है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसके अंदर आपने अपने क्वेश्चंस और डाउट्स पूछने हैं। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 दिन तो लाइव क्लास में रहेंगे हमारे साथ, बाकी 5 दिन जो बचते हैं उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उस समय कोई अगर आपको ऐसे कोई डाउट या सवाल आता है मन में, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका, उसके अंदर पूछना। ये क्लास व्हाट्सएप ग्रुप कहलाता है जो आप ज्वाइन करते हैं। The individual participant progress tracking and feedback, we do it on a weekly basis so that we know and you know that if you're making progress or not, and if not, then we try to find out the reason. हर हफ्ते आपको एक प्रोग्रेस ट्रैकिंग फॉर्म भरना पड़ता है, जिससे हमें पता लगता है कि आप कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बहुत जरूरी है। Then therapy customization for each participant in the 10th week. This is very important. If you remember, in the first point, we talked about the प्राण शक्ति diagnosis. अगर आपको याद हो, हमने पहले पॉइंट में बात की थी प्राण शक्ति डायग्नोसिस की। अब 10वें हफ्ते में उस डायग्नोसिस के आधार पर आपकी जो थेरेपी है, आपकी जो क्रियाएं हैं, उनको फाइन ट्यून किया जाएगा, उनको कस्टमाइज किया जाएगा, राइट? 10वें हफ्ते में होगा। In the 10th week, the kriyas or the therapy will be fine-tuned and customized in the 10th week based on your Pran Shakti diagnosis. Now, a question arises, if the diagnosis were done in the first week, why was the therapy not customized that time? एक सवाल उठता है कि अगर डायग्नोसिस पहले हफ्ते हुआ है तो 10वें हफ्ते में क्यों उसका कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, पहले में ही क्यों नहीं, राइट? कुछ लोगों के दिमाग में शायद आया हो, मैं बताता हूँ। शरीर को पहले तैयार किया जाता है इस कस्टमाइजेशन को रिसीव करने के लिए। द बॉडी इज फर्स्ट प्रिपेयर टू रिसीव दिस कस्टमाइजेशन। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन दिस 9 वीक्स? तो फिर होता क्या है 9 हफ्ते में? 3 मेन चीजें होती है। लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन दिस 9 वीक्स, बट प्राइमरीली यू कैन अंडरस्टैंड बाय 3 मेन। फर्स्ट, द वात पित्त एंड कफ ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड। बॉडी का, शरीर का वात पित्त और कफ बैलेंस किया जाता है कुंभक के द्वारा। सेकेंड थिंग दैट हैपेंस इज the 3 basic alignments of the body are done. अगर आपको याद हो, स्वामी जी ने वीडियो में भी बात की है कि 3 बेसिक अलाइनमेंट्स होती हैं बॉडी में, इनर थाइज, नेवल एंड चेस्ट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से होती हैं क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो मिसअलाइंड है। और तीसरी जो मेन चीज इसमें की जाती है, आपको कंट्रोल्ड एक्सलेशन सिखाया जाता है। द थर्ड थिंग दैट यू आर टॉट इज कंट्रोल्ड एक्सलेशन, बिकॉज दिस थेरेपी, कुंभक थेरेपी, इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड एक्सलेशन। और तीसरी जो चीज आपको सिखाई जाती है वो कंट्रोल्ड एक्सलेशन सिखाया जाता है, कंट्रोल तरीके से सांस कैसे छोड़ना है, क्योंकि ये पूरी जो थेरेपी है, पूरा जो कुंभक थेरेपी है, वो उस पर आधारित है। और इसी वजह से अगर आप कोई ऐसी क्रिया करते हैं जिसमें फोर्स, बहुत जोर से सांस छोड़ा जा रहा है, जैसे कपालभाति एक क्रिया है, तो वो अवॉइड करने को कहा जाता है। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग विच इन्वॉल्व फोर्स्ड एक्सलेशन, सो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू डू दोस क्रियाज ड्यूरिंग दिस during the first 5 to 6 months of your practices. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट पॉइंट, extra free support for 30 days after the program is over. This is the only program which offers 30 days of support after the program is over. ये अपने आप में एक अलग प्रोग्राम है, ये अपने आप का एक अनूठा प्रोग्राम है अष्टांग चिकित्सा, जिसमें 30 दिन का और एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं आपके थेरेपी या आपके कोर्स का कंप्लीशन के बाद। ये क्यों देते हैं? Why do we do this? Because many times some of the people, some of the participants, they miss a lot of classes. Maybe they fall ill. There's some issue in the some health issues are there, or they're traveling. किसी भी कारण से अगर क्लासेस मिस होती हैं तो भी आपको 30 दिन का और एक्टिव सपोर्ट मिलता है हमारे इस प्रोग्राम में। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम फी क्या है? काफी लोग इसका इंतजार करते हैं लास्ट तक कि देखते हैं फी क्या बताते, राइट? देखते हैं। नॉर्मल फीस इज 40,500, बट जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि एक स्पेशल प्राइसिंग है उन लोगों के लिए जो अभी लाइव अटेंड कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? लेट्स सी। स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग इज जस्ट 6,500 एंड दिस इज वैलिड टिल 26th August, सैटरडे तक। ये 12:30 PM तक, दोपहर 12:30 बजे तक ये फीस वैलिड है, बिकॉज लिमिटेड सीट्स होती हैं। इस डिस्काउंट बहुत ज्यादा इसमें दिया जाता है, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। हाउ टू एनरोल कैसे करना है? फर्स्ट स्टेप इज टू पे द प्रोग्राम फी।
that you post the receipt in the WhatsApp group. फिर आपने वो रिसीप्ट जो है, आपकी जो रसीद है, जो आपकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, वो आपने WhatsApp ग्रुप जिसके अंदर आप हैं उसमें शेयर करनी है. Then step 3 is to fill the participant onboarding form that Neha from our team will be sending you on your personal chat. तीसरा जो स्टेप है उसमें आप अपनी एक फॉर्म भरेंगे जो नेहा आपको भेजेंगी. एंड देन यू जॉइन द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप वेयर यू विल गेट डेली सपोर्ट. और चौथा स्टेप है आप अपने जो क्लास व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे जहां पर आप डेली सपोर्ट मिलेगा, जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने अभी बात की है. स्टेप 5 इज टू स्टार्ट अटेंडिंग क्लास टू लर्न अष्टांग चिकित्सा. पांचवा स्टेप है अष्टांग चिकित्सा सीखना शुरू करना. पेमेंट मेथड्स हम इसमें शेयर कर देंगे जूम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है. और ये लास्ट स्लाइड है इस प्रेजेंटेशन का, मेरी इस पार्ट का. दिस इज अ सुपर टीम विच विल बी एट योर सर्विस एंड वी हैवंट गिवन दिस टाइटल ourselves to us. ये हमारे पार्टिसिपेंट्स ने हमें टाइटल दिया बिकॉज जो हैंड होल्डिंग होती है, जो सपोर्ट मिलता है, तो उन्होंने सुपर टीम का हमें टाइटल दे दिया एंड वी आर वेरी हैप्पी विद इट एंड वी आर ऑब्लाइज्ड. Rachna Shindler Bothra, she is the program director and she is the webinar host also today. Shalini Bhagwata, she is the class manager. She takes care of the batches, which met was assigned to which batch. Ashwini Kumar is the manager of IT. And Neha Upadhyay, she is the enrollment in charge. She is the person you'll be talking to the most before you start your classes. She'll be confirming your payment, sending you all the links and everything. Then we have a proper team of mentors: Ranjana, R.D. Gupta, Soni, Aruna, Neena, Meera, Sushma, Manvi, Surya Pratap. Why so many mentors are required? Because it's an online program. So in online programs, things are not same as you are used to a face-to-face or a physical location of this thing. So we need to see that all the participants are getting supported, all the participants are getting the question answered. So there's a proper team here. WhatsApp admin, Anil Chauhan, that's me. I'll be answering your question in the WhatsApp group because due to shortage of time, Swamiji may not be able to answer everybody's question. So if your question is not taken or answered by Swamiji, please don't worry about it. Post the same question in the WhatsApp group and we'll make sure that your question is answered. Technical, Himanshu Reddy is the person who uploads all the videos, the written instructions. He helps you with installing the app. If there's any problem with accessing your recorded videos, he's the person who will be helping you. Then we have a special team to give you personal support. We have Anita, Ankana, Kavita, Usha. Who are these people? ये करते क्या हैं? These people call each and every participant on the phone to inquire if your program is going fine, if you're facing any problem or not. So we have a proper team and we have formed a proper system. This program, we have made it so good that it has become better than an offline program. You'll realize when you attend this program. And that's why a proper team is in place. So just be assured that you are in the right place and with the right program. And with this, I'll end my part of the presentation. Thank you and namaskar. And I hand over the webinar back to Rachna ji. Thank you so much, Anil ji, for sharing the program details. Swamiji has already joined in, so we will not waste much time so that we can take up as many questions as possible. Namaste, Swamiji. Good evening. I'll just read out the questions one by one. I cannot see very many questions in the chat related. So can anybody from the participants who would like to ask their questions, please raise their hands. Yes, I've unmuted you. Please ask your questions. Hi, Swamiji. Namaskar, बोलिए. My name is Upasna. I'm from Delhi. At the age of 17, I had tuberculosis in my spine, lower spine.
एंड उसके बाद व्हाइल आई वाज ऑन मेडिकेशन, बिकॉज ये पूरा लंबा मेडिकेशन होता है, तो 1 साल का मेडिकेशन माय बॉडी डिड नॉट टेक, सो आई वाज पुट ऑन सम इंजेक्शन कोर्स फॉर 90 days एंड आई टुक सम 4 to 5 pills. बट उसके बाद वीकनेस इतना आया, क्योंकि डिटेक्ट होने में 3 महीने लग गए थे. राइट नाउ माय एज इज 43, बट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद माय लोअर बैक. और उसी समय जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था वो ये था कि नर्व कंप्रेशन होता था, जिसकी वजह से मैं वॉक नहीं कर पाती थी. तो डॉक्टर्स ने बहुत फिजियोथेरेपी कराने को बोला, सब कुछ किया, आई डिड ऑल द ट्रीटमेंट्स, बट इट नेवर वेंट अवे. स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा इम्प्रूव हुआ, लेकिन अभी भी जैसे इफ आई बेंड, इफ आई सिट फॉर टू लॉन्ग, माय नर्व गेट्स कॉम्प्रेस्ड and I'm unable to walk, and the body stiffness is so much, और मेरे को एक्सरसाइज करने का ही मन नहीं करता है. सो इसकी वजह से और भी बहुत चैलेंजेस बॉडी में हुए. कोर वीक हो गया, बैक में थोड़ा आई स्टूप, though I'm only 43. Now it's affecting my knees. My knees are also affected badly. And doctor is saying कि you can go for a replacement, जैसा आपने अपने वीडियो में बताया. So मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में कोई चीजें हैं जो मिसिंग है, जैसे कोई वीकनेस आपने जैसे बताई, अगर वो ठीक कर दी जाए तो आई एम श्योर माय सिस्टम विल फॉल इन प्लेस. बट नो एलोपैथिक डॉक्टर हैज बीन एबल टू टेल मी दैट व्हाट इज मिसिंग. दे से डाइट खाओ, एक्सरसाइज करो, वेट लूज करो, बट वो होता नहीं है. सर्वाइकल भी हो गया अभी. सो मल्टीपल चीजें हैं बैक से रिलेटेड, एंड लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि मेरे में एनर्जी ही नहीं रहती है, हमेशा लेथार्जी रहती है. एक्सरसाइज करने का, वॉक करने का भी मन नहीं करता, बिकॉज माई जॉइंट्स, माई नीज आर पेनिंग. Yes, Another yes, thing yes. which is developed is, last thing I want to say is, I have developed nodules in all areas where thighs हो गया या arms हो गए, जहाँ पे भी थोड़ा fat रहता है, वहाँ सब पे fatty nodules हो गए हैं, which have become very painful, and they are even further hampering my mobility, and मेरे शरीर में बिल्कुल ऊर्जा ही नहीं रहती है उनकी वजह से. सो मैं आपको थोड़ा आंसर दे देता हूँ. ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं ना, उनके लिए, सभी के लिए, फॉर एवरीवन हु आर प्रेजेंट है, इट विल बी यूजफुल, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू नो हाउ लाइफ वर्क्स, यू विल नॉट बी एबल टू टेक द राइट स्टेप. आप सही कदम नहीं उठा पाएंगे अगर आपको ये नहीं मालूम कि जीवन काम कैसे करता है. तो एक बात बताइए मुझे, आप सभी समझदार हैं, आप एक बात बताइए, आपके शरीर को डिजाइन किया गया है ना किसी भी इन्फेक्शन से बाहर निकलने के लिए, किसी भी डिजीज से बाहर निकलने के लिए, जी, ये आपके शरीर को डिजाइन किया गया ना. तो इसका Yes, मतलब अगर आप कोई भी प्रॉब्लम देखें आज के टाइम पे जो कि बहुत बढ़ रही हैं, ये आज से इफ यू गो बैक 3-4 जनरेशन बैक, तो ऐसा था ही नहीं. और फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स बॉडी हैज नॉट क्रिएटेड एनी डिजीज. व्हाई? एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज इन द मॉडर्न स्टडी, जहां पर कि अबॉरिजिनल्स ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑफ सदर्न अमेरिका, ऑफ अफ्रीकन्स, अबॉरिजिनल जो ओरिजिनल लोग हैं वहां के, उनको कभी क्रॉनिक डिजीज ही नहीं होता था. तो ऐसा क्या है कि हम एडवांस हो गए और डिजीज बढ़ा दिया? ऐसा क्या है कि हमने क्या गलती कर दी जिससे कि डिजीज बढ़ ही जा रहा है, कोई कम ही नहीं हो रहा, कोई भी डिजीज कम नहीं हो रहा. तो ट्यूबरकुलोसिस या कोई भी इन्फेक्शन जैसे कोरोना हो गया या फ्लू हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया. ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई करके नाम कुछ भी रख देते हैं. तो मगर बैक्टीरिया को आपका बॉडी खत्म कैसे करेगा? उसके पास एक इम्यून सिस्टम है और उसके पास में एक तरीका है बैक्टीरिया को खत्म करने का, तभी आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन रेगुलेट रहती है. तो ये बॉडी के पास में तरीका है इसको खत्म करने का. और आसानी से अगर आपको बताऊं तो आसानी से समझने वाली बात यह है कि जब भी इंफेक्शन होगा तो क्या होता है, आपको अपने शरीर को ऑब्जर्व करके आप पता कर सकते हैं कि क्या करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को ठीक, क्योंकि आपका बॉडी अपने आप को ठीक ही करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता. वो रिकवर ही करता है, बचपन से बुढ़ापे तक वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है. उसके पास और कोई तरीका ही नहीं है. रिकवरी का स्ट्रेंथ कम होता जाता है उम्र के साथ में, ये चीज आप मान सकते हैं, मगर रिकवरी के अलावा कुछ जानता ही नहीं. यानी इन्फेक्शन जैसे ही आपके बॉडी में होगा, सबसे पहली चीज आपका शरीर क्या करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, जिसको आप कहते हैं फीवर हो गया. 5 डिग्री का टेम्परेचर अगर बढ़ा देगा तो ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस जो है वो रह नहीं पाएंगे, खत्म हो जाए.
मगर अभी देखिए, अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल में अगर एक बच्चे को भी थोड़ा सा फीवर होता है तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं? उसका फीवर डाउन कर देते हैं, उसका फीवर डाउन कर देते हैं। शरीर को हमने मौका ही नहीं दिया कि वो इन्फेक्शन को ठीक करे। इन्फेक्शन को ठीक करने की स्ट्रेंथ शरीर के पास में, हमारी बॉडी के पास में है, वो स्ट्रेंथ को हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जैसे आपके पांव को हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो हमने क्या किया, एक बैसाखी ले लिया या कोई मशीन लगा दी, तो उससे आपके पांव मजबूत हो जाएंगे। पांव को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तभी तो मजबूत होंगे। जब आप बॉडी को Yes, sir. इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, वॉट एवर द बॉडी वॉन्ट्स टू डू, यू जस्ट वॉन्ट टू ब्लॉक इट। उल्टी करेगा, उल्टी बंद कर देंगे, दस्त करेगा, दस्त बंद कर देंगे। अरे हीरे मोती निकल रहे थे क्या, आप रोकना चाह रहे हैं इसको? कुछ गंदगी निकल रही थी, आप नहीं उसको निकलने देते। शरीर कोई भी काम करेगा, आप उसको गलत मान देंगे। दिस इज वेस्टर्न थॉट प्रोसेस। पूरा एलोपैथी इस वेस्टर्न थॉट प्रोसेस पे काम करता है कि शरीर गलत है, क्योंकि उनका रिलीजन कहता है कि लाइफ गलत है। तो ये तो सुपरस्टिशन पे बेस्ड है। साइंस का टैग मार्केटिंग के लिए लगा दिया। आप भी बोलते हैं एलोपैथिक साइंस। एलोपैथी में कोई साइंस कहां पे है, बता दीजिए मुझे। टॉर्चरिंग योर बॉडी इज साइंस। आपकी दवाइयां करती क्या करती हैं बताइए? आपके दर्द की दवाइयां क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर। आपके उनका देखो, पाश्चात्य जगत लड़ना जानता, उसके अलावा कुछ नहीं जानता। वो बुद्धि उनमें होती नहीं है। तो आपके शरीर के साथ में लड़ोगे आप, और ये तरीका अपनाया आपने शरीर को ठीक करने का, फिर तो 100% गारंटीड है, स्टैम्प पेपर में लिख लो, सारी मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। यही हो रहा। मुझे एक बीमारी बता दीजिए जो कम हो रही है। टेल मी वन डिजीज। जयंती जी, थोड़ा जल्दी कर दिया आपने, पहले बोल देते तो आई वुड हैव spoken in English if you would have told me earlier. So what I am saying is, you are fighting with your own body and you think you will get into some kind of a health. It's a ridiculous thought process. It's a ridiculous thought process. और एंटीबायोटिक खा के अगर आपने इन्फेक्शन को ठीक किया है, if you have cured infection by taking some kind of an external support, then your strength of curing yourself will anyway go down. Isn't it? You have not created the strength of your own body to fight any kind of invasion. Have you done it? Has it been taught to you in school? No, not at all. Not at all. You're fighting your own body and you think you're doing good, and you call it science. You call it science. Tell me, diabetes increasing, decreasing? Thyroid, look at the third generation. Did your grandmother have thyroid? Autoimmune disorder increasing, decreasing in the world? Epidemic ban gaya hai. It is becoming epidemic. Cancer increasing at the rate of 12%. Heart disease and blood pressure. If you have controlled your blood pressure and you have an idea that the risk will come down, so nobody would have got heart attack in today's world if this idea would have worked in the last 100 years. In last 100 years, not even a single person has come out of blood pressure and heart disease. Not even a single person has come out of arthritis, rheumatoid. Give me one example at least in the last 100 years. एक example तो दो। नहीं, आप लोग नहीं सोचते ऐसा? If you think this is science, torturing your body is science, then where are we going? So tuberculosis, and you name it by different names. It's a fancy term through which you name a disease, and then you have the audacity to say that this disease cannot be cured. You know, diabetes cannot be cured, autoimmune disorder cannot be cured. Why you have named such things, and why you are putting a condition that you have to get your blood pressure or blood sugar to this level, or your immune
The response should be in this level. By keeping the body in that level, has anybody come out of that disease or difficulty? Then what are we doing? If that cannot produce even a single result and we are calling it science, whom to blame? Whom to blame? So what has happened? Your body has the strength of recovery. For millions of years, your body hasn't created any chronic disease and has come out of all kinds of infection. Today, we have become so much hygienic that we are prone to more infection. Come on, what are we talking? By becoming more hygienic, if you are prone to get infection more, many thousand times more, then the concept of hygiene, is it correct? ये सोचना नहीं चाहिए क्या हमको? Every 10 years, one antibiotic becomes resistant in human body. आप एंटीबायोटिक वो काम नहीं करता 10 साल बाद. DDT, you know DDT used to kill cockroaches. Now cockroach dance on DDT. Our approach to health and alleviation of disease is completely wrong. बिल्कुल गलत है. लेकिन now what do you do? What will you do at this point of time? If you have difficulties, if you have disease and difficulties, what do you do? What is the first thing that you should do? The environment has become bad. The food has become bad. Lifestyle is not conducive. Then you should have the tolerance to all these bad things. The first thing is create tolerance in your body so that you do not get into risk. Suppose your blood pressure is 200, the upper limit. It is 200. Systolic is 200. Keep 10 people with 200 blood pressure in front of you. Will they get into the same problem, or there will be different problem with different people? There will be different problem with different people. For some person, 200 blood pressure will be something he'll be able to tolerate very easily. Some will not be able to tolerate it. So is 200 blood pressure problem or the tolerance of the body is problem? 200 का शुगर लेवल के 10 बंदे रख लीजिए सामने, क्या सभी को सेम प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा. तो प्रॉब्लम किस वजह से आया? 200 ब्लड शुगर की वजह से आ रहा है? नहीं, टॉलरेंस आपका कम हो गया, इसी वजह से वो परेशान हो गया. इन्फेक्शन, कोरोना, देयर आर मेनी पीपल जिनको कोरोना का हुआ कुछ भी नहीं हुआ, and if they got it, they came out in 3 days. We have hundreds of examples. People did Kumbhak, they didn't need ventilator support just by doing Kumbhak. Magar, even if somebody is not doing, there are many millions of people who didn't get into corona. Why? Their tolerance was more. But can you create the tolerance of this body? Yes, not by taking a pill. You can't create it by taking a pill. You can't create it by taking right food, whatever right you call. Actually, you can't avoid the food which is available and the environment which is available. So how can you create more tolerance of this body? We have people who are doing Kumbhak, they got into 3 heart attacks in a day, nothing happened. They are still there. Doctors are amazed. How? अरे कैसे बच गए यार? Because of they created more tolerance in their body. तो टॉलरेंस कैसे क्रिएट करता है बॉडी को? आप बिल्कुल अपने लॉजिक में, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से समझिए. हाउ विल यू टॉलरेट 10 kg ऑफ वेट? 10 किलो वेट को कैसे टॉलरेट करेंगे आप? कैसे उठाएंगे? पहली बात तो ये, आप उठा के देखो. You will hold your breath and lift that weight, isn't it? Without holding your breath, you cannot lift any kind of weight. इसका मतलब सांस रोक के आप 10 किलो उठाते हैं. तो अगर आपका टॉलरेंस बढ़ाना है, 20 किलो उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? To tolerate more weight, what you will have to inculcate in this body?
more breath hold capacity, isn't it? So your tolerance will increase with your increased breath hold capacity. Are you doing any practice of that? कोई शुगर लेवल आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई वीकनेस आपको प्रॉब्लम नहीं देगी इफ यू हैव दैट स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, दैट strength of tolerance. Somebody wants to push you, you're standing in, you don't want to fall down. How will you tolerate that push? By holding your breath and making yourself more sturdy on that place, isn't it? अपने आप को अड़ा के रखेंगे ना उस जगह पे, सांस रोक के नहीं गिरे, एक पांव पे खड़े होने की कोशिश कीजिए. कैसे आप बैलेंस बना के, how will you create that balance? By holding your breath. Swamiji, I agree to what you're saying. Can you do anything without holding your breath? Tell me. So what has become weak? What has become weak? मैं आ रहा हूं आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूं जी. But I want to see, I'm answering for everybody here. मैं उन सभी को बताना चाह रहा हूं कि if you have become in any way, if your muscles is not functioning, आपके मसल काम नहीं कर रहे, नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा, या हड्डियों में कमजोरी आ गई है, तो बेसिकली हुआ क्या, प्रॉब्लम कहां पे है? पहली बात तो यू कंट्रोल योर लिम्स बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. सो इफ योर लिम्स हैव बिकम वीक, और इफ सम काइंड ऑफ न्यूरोपैथी हैज हैपेंड वेयर द कंट्रोल इज नॉट देयर, सो हाउ विल यू bring the control? If you increase the breath hold, you'll see you'll be able to come out of neuropathy. Now neuro regeneration and then epigenetic ट्रिगर, अगर मैं बहुत टेक्निकल बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूं, बट देन व्हाट, आपको मैं कितना भी समझा दूं, क्या आप ठीक हो जाएंगे उससे? सो फॉर लोअर बैक पेन, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन टुडेज टाइम, यू विल सी बहुत लोगों को लोअर बैक पेन हो रहा है, पांव में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, स्कोलियोसिस एंड व्हाट नॉट, आप कोई भी नाम ले लीजिए. सो व्हाट हैज हैपेंड, whenever there is an external impact on the body by infection, चाहे वो infection हुआ by taking medicine, अगर आपने दवाइयां ली हैं बचपन से, कोई ना कोई दवाई लेते रहते हैं हम, by taking wrong kind of food, genetically modified, processed, hybrid, inorganic, or by the deviated environment that we have to live in. We can't go, अभी तो चांद पे जाने का एक रास्ता बना, मगर जा नहीं सकते, वहां पे एनवायरमेंट जीने लायक अभी है नहीं. सो वी कांट रन अवे फ्रॉम द, है ना? लेकिन जब भी ये चीज खराब होती है, व्हाट इट इंपैक्ट्स, आपके शरीर में क्या इंपैक्ट होता है? सबसे पहला, द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैपेंस. आपका शरीर दो तरीके से रिस्पॉन्ड करता है. भोजन डालेंगे तो उसको यूज करेगा, गलत चीज डालेंगे तो उसको निकालने की कोशिश करेगा, या अब उसे झेलने की कोशिश करेगा. यही है इम्यून रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, ये दो ही रिस्पॉन्स है. गलत चीज डालेंगे, बचपन से जो हमने डाले, तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स खराब हो रहा है. डू यू नो योर प्रॉब्लम गेटिंग इनटू इन्फेक्शन फास्टर, जल्दी इन्फेक्शन आना, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है भी है, और ये इम्यून डिसऑर्डर भी है. और आप देख लीजिए, रीजनरेशन नहीं हो पा रहा. अरे भाई, बहुत पहले इन्फेक्शन हुआ था ना, बचपन में इन्फेक्शन हुआ था, बॉडी को रीजनरेट कर लेना चाहिए था, मगर बार बार स्टेरॉइड खा के या बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां खा के हमने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया. उसकी वजह से रीजनरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया. तो दो चीजें यहां पे है, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ हमको क्रिएट करना है, और दूसरा हमें इन्फेक्शन से लड़ने का स्ट्रेंथ क्रिएट करना. इन्फेक्शन से लड़ने का तरीका वही होता है, इफ योर बॉडी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर हीट, अगर गर्मी पैदा कर पाए तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा. आई एम एन एग्जाम्पल कि शायद 30 साल पहले मुझे हर महीने कोई ना कोई इन्फेक्शन होता था. आज मुझे 15 साल हो गए, कोई इन्फेक्शन नहीं. इन्फेक्शन होता है, पहले होता था, चला जाता था. ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज योर बॉडी इज एबल टू प्रोड्यूस हीट, मेटाबॉलिक हीट, वेन एवर इट रिक्वायर्स दैट. उसको जरूरत पड़ती है तो हीट. एक और एक्सपेरिमेंट करके देखें, सांस रोके थोड़ी देर तक, उसके बाद छोड़ें, फिर रोकें, फिर छोड़ें, ऐसे 15 मिनट करो, देखो पसीना आने लग जाएगा. विदाउट मूविंग योर बॉडी, यू आर एबल टू प्रोड्यूस हीट इन द बॉडी.
इट इज एन इंडिकेशन कि आप अगर कुंभक करेंगे ना तो आपका मेटाबॉलिक हीट बढ़ता है, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, भूख लगनी अच्छी हो जाएगी, बॉडी में चीजें मूव नहीं कर पाई तो मूव करने लग जाएंगी प्रकृति की वजह से। जैसे किसी का कफ प्रकृति है तो बॉडी में मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रही चीजें तो रीजनरेशन नहीं होगा, हार्मोन मूव नहीं करेंगे, हार्मोन का इंबैलेंस हो जाएगा, एंजाइम्स मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये दो चीज अगर आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन बहुत आराम से ठीक हो जाएगी। दूसरी बात और कुछ समझाने के लिए बता रहा हूं, शरीर में ना, शरीर अपने आप को ऊपर उठाता है। दैट इज हाउ अ स्मॉल किड ग्रोज अप, बिकम्स टॉल। जब है ना, ग्रेविटी तो नीचे खींच रहा है आपको, मगर शरीर अपने आप को ऊपर पुश करने की कोशिश करता है। इसे उदान फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एज उदान फैक्टर। उड़ान, उड़ना, टू फ्लाई, ये आपने सुना होगा, इट हैज कम फ्रॉम द रूट उदान। सो उदान शक्ति, उदान शक्ति, उदान शक्ति अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो भी आपको नीचे के टाइम बॉडी पे लोड पड़ेगा। अगर शरीर की उदान शक्ति अच्छी नहीं होगी तो कमर दर्द होगा, वहां पे लोड पड़ेगा, हिप के जॉइंट्स जो हैं वहां पे डीजेनरेशन होगा, घुटनों में डीजेनरेशन होगा, वेरिकोस वेन होगा पांव के अंदर, मसल क्रैम्प्स होंगे। तो उदान शक्ति जो ऊपर उठाने की शक्ति है, अगर उसको बढ़ाते हैं तो वो मसल क्रैम्प चले जाएंगे या फिर कमर का दर्द चला जाएगा ना। बॉडी में कोई चीज जैसा एक और चीज आपने बताया, गांठें बन रही हैं क्योंकि बॉडी में मूव नहीं कर रहा, कुछ मूव नहीं कर रहा तो जमा हो रहा है एक जगह पे। और इसके और भी कारण हो सकते, दे कैन बी अदर रीजंस फॉर व्हाई देयर आर लॉट ऑफ अनवांटेड lump which is happening in the body. फीमेल्स में ये पीसीओडी के केसेस भी आज के टाइम पे बढ़ रहे हैं, fallopian tube blockages बढ़ रहे हैं, एंड अनवांटेड सिस्ट हैपनिंग अक्रॉस द बॉडी। इसके केसेस अगर आप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि शरीर के अंदर कोई चीज मूव नहीं कर पाती। एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया हर एक के बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण या इंपैक्ट के कारण, या तो उनको टैग कर दिया गया या तो बिना टैग के घूम रहे हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। लेकिन 90% से ज्यादा लोगों को है। किसी को टैग किया गया तो उसको थायराइड टैग किया जाता है, या डायबिटीज टैग की जाती है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर टैग किया जाता है। मगर ये डिविएशन तो सभी के अंदर है ही। तो अगर सपोज करो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है बॉडी, क्योंकि अभी आज के टाइम पे देखोगे तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और दूसरा हिस्टामिन रेजिस्टेंस, क्योंकि बॉडी के अंदर तो हमारी गट माइक्रोबायोम खराब हो रहा है, लिवर पे इंपैक्ट आ रहा है दवाई खाने के कारण, तो फैटी लिवर हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, इंसुलिन ब्लड में घूम रहा है ज्यादा, हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं, वो जहां भी जाएगा वहां पे लंप फॉर्मेशन करेगा, अननेसेसरी ग्रोथ करेगा। तो ये सिस्ट फॉर्मेशन बॉडी में ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करें। वो इंप्रूव करने का अगेन एक ही तरीका है, वो कुंभक से कर सकते हैं। दूसरी बात और भी सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, अगर कहीं डिपोजिशन आपके बॉडी में आ रही है तो इंटरनल प्रेशर क्रिएट करेंगे तो निकल जाएगा। व्हाट इज कुंभक? इट्स अ रिदमिक इंटरनल प्रेशर क्रिएटिंग मैकेनिज्म। तो वो निकल जाएगा, हार्मोनल बैलेंस आ जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसे रिजल्ट है हमारे पास में, और वो सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो डायग्नोस्टिक्स के साथ में, रेगुलर डायग्नोस्टिक है उनके रिजल्ट है। एमएस काउंट बढ़ जाता है, स्पर्म काउंट बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इवन जो हार्मोन्स नहीं निकल पा रहे वो ठीक हो रहे हैं, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ टारगेटेड इंपैक्ट इनसाइड योर बॉडी थ्रू कुंभक। आपके ऑर्गन्स के ऊपर एक टारगेटेड इंपैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं बाय कुंभक, नॉट अदरवाइज। और कोई तरीका नहीं है अगर आप किसी ऑर्गन पे इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं अंदर आपके शरीर के अंदर। Swami ji, what about the disc bulge which has already taken place? हाँ, डिस्क बल्ज जैसे हो गया। सो वी हैव प्रोसेसेस, हम प्रोसेस सिखाते हैं। देखिए आपके शरीर में 2-3 चीजें अगर आप ठीक करोगे, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कहते हैं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी करने का स्ट्रेंथ। नाउ इन टर्म्स ऑफ, ये आपको मैं बहुत तरीके से बता सकता हूं, बट इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ इसको कहते हैं व्यान शक्ति। और ब्रेथ के टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करूं तो अगर आप मैक्सिमम इनहेल करने के बाद में कम से कम 4 टाइम्स होल्ड कर पाएं, और उसके बाद में 2 गुना इनहेलेशन के 2 गुना ज्यादा एक्सेल कर पाएं, वो भी विदाउट प्रॉब्लम, तो आपका व्यान स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी की स्ट्रेंथ ठीक है।
यहां पे कोई भी नहीं होगा जिसकी वो स्ट्रेंथ ठीक है। अगर वो प्रैक्टिस आप कर लें तो हम आपको 3 मेजर चीजें सिखाते हैं, अंगन्यास, मर्म विन्यास, कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में 3 चीजें हैं, लास्ट पार्ट है व्यान, क्रिया, कुंभक। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। दूसरा पार्ट, अलाइनमेंट अगर आपकी बॉडी की ठीक कर दें तो डिस्क बल्ज ठीक हो जाता है। लेफ्ट और राइट साइड का अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट नहीं होता तभी जोर पड़ता है। 2 बात बताया, पहला स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, दूसरा अलाइनमेंट। अगर ये 2 चीजें साथ में करेंगे तो डिस्क बल्ज ठीक हो जाएगा। इसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती। ऑपरेशन इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ डिस्क बल्ज। लेट मी टेल यू, ऑपरेशन कोई भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स अ मैनेजमेंट। कि उस समय तकलीफ हो रही है तो आप या तो उसको अरेंज कर दो या तो वो चीज निकाल के आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। बट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्पाइन वो ऑपरेशन से नहीं आने वाला आपका। तो अगर बहुत तकलीफ है तो ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं उस टाइम पे, मगर अब एक डिस्क में बल्ज आ गया, क्या दूसरे में नहीं आएगा? तो ट्रीटमेंट तो आपने किया ही नहीं, तो ट्रीटमेंट तो करिए भाई। ऑपरेशन इज जस्ट अ मैनेजमेंट। पेन, दर्द कम हो जाए तो दर्द कम हो जाने से स्पाइन की स्ट्रेंथ तो वापस नहीं आने वाली। तो आपने दर्द की दवाई खा ली जब दर्द हो रहा है तो, मगर वो ट्रीटमेंट तो नहीं है। तो आप ट्रीटमेंट तो करिए कम से कम। मैनेजमेंट करने के लिए ठीक है आप कर लो, बहुत जरूरी हो तो शॉर्ट टर्म आपको कर लेना चाहिए, कोई भी मेडिसिन आप यूज कर लीजिए, मगर क्या मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है। आपके स्पाइन के स्ट्रेंथ को तो वापस लाना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा, कितने ऑपरेशन कराएंगे लाइफ में? हिप रिप्लेस करा लो, घुटने रिप्लेस करा लो, स्पाइन का एक सर्जरी हो गया, दूसरा सर्जरी हो गया, और हर सर्जरी के बाद में आपकी लाइफ दुभर हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो उसको रिकवर भी तो करना है भाई, रिहैबिलिटेशन भी करना पड़ेगा। सर्जरी करवा लिया तो ऊपर से अब आपको ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, सो दैट नेक्स्ट डिस्क बल्ज डजंट हैपन। लेकिन कम से कम मौका दीजिए अपने शरीर को, एक 6 महीने का मौका। यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, बट गिव योर बॉडी 6 months टाइम, वर्क अपॉन इट, get back the forces, the strength factor of your body, the recovery strength of your body, the regenerative strength of your body. ये कुंभक करेगा तो ये वापस करें, आप देखें आपको फायदा कितना हो रहा है, उसके हिसाब से देन यू जज कि मुझे ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे और क्या करना है। सो आपको पता चलेगा कि अगर आप अपने शरीर को थोड़ा मौका देंगे तो इन मोस्ट केसेस दे विल नॉट हैव टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जरी। बॉडी कैन रिकवर ऑन इट्स ओन, अपने आप ही रिकवरी कर सकता है, इसके पास में वो सारी क्षमता है। थेरेपी पूरा वो प्रोसेस है, पूरा ये मॉड्यूल है, एक प्रिसाइज ट्रीटमेंट है जिससे कि आपके वो फैक्टर्स, फोर्सेस वापस आ सकते हैं, और उसके बाद में आपको किसी सर्जरी के जाने की जरूरत नहीं है। और अगर देखिए गांठ हो गई ना, गांठ डराते हैं कि कैंसरस हो जाएगा, मगर गांठ जरूरी नहीं है कि कैंसरस होगा। लेकिन उसका टेस्ट कराएंगे, है ना, लेप्रोस्कोपी कराएंगे तो कैंसरस होने के चांस बढ़ जाते हैं। Swamiji, that's a problem. 90% of the doctors scare you for every symptom that you have. हाँ, तो प्लीज डोंट गो फॉर दोज काइंड ऑफ इवन डायग्नोस्टिक्स। आपको मालूम है, इफ यू गो फॉर कैंसर में जो स्कैन करते हैं, स्कैन की तरफ में जाएंगे तो आपको रेडियो एक्टिव ग्लूकोज खिलाया जाएगा, वो रेडियो एक्टिविटी से ही आपको कैंसर हो जाएगा, है ना। लैप्रोस्कोपी अगर करवाएंगे तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दीज आर नॉट स्टडीज विच आर अवेलेबल विच सेज कि आपका वो कैंसर का जो टेस्ट है उसी से कैंसर हो जाता है। एंड नोबडी नोज व्हाट इज हाउ कैंसर हैपेंस, क्योंकि कैंसर का कोई टेस्ट होता ही नहीं है। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का टेस्ट होता है, नॉट कैंसर। कैंसर का कोई टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मालूम ही नहीं है कि वो कैसे, क्या कैंसर से टिश्यूज क्यों फॉर्म हो जाते हैं, कैंसर के बारे में मालूम नहीं। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क। व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन में क्या करेंगे। तो मैं आपको बोलता हूं, सबसे पहली बात, आपके बीमारी जो है वो आपका सिम्टम बताता है, ना कि कोई टेस्ट। दुनिया में कोई टेस्ट जो है उस पर आप भरोसा ना करें, अपने शरीर के ऊपर भरोसा करें। इफ योर बॉडी इज नॉट गिविंग एनी इंडिकेशन or symptom,
you don't have a problem. पहली बात ये. दूसरी बात, if you recover the strength and forces of your body, the body is designed to recover from any kind of disease including cancer. तो एक मौका देके देखिए. बाकी चीज तो देखिए आप पे लोड आ रहा है ना, कोई कुछ बता रहा है, आप गूगल में पढ़ रहे हैं तो भी वो तो नैरेटिव है. आपका डॉक्टर जो बोल रहा है गूगल में पढ़ो, वहीं पे लिखा हुआ है वो भी, तो आप हर जगह पढ़ रहे हैं, है ना. आप एक घोड़े को लेके जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं बकरी है, तो एक बार में 4 बार बोलेंगे लोग तो आप मानने लग जाओगे बकरी ही है भाई. ये ऐसा ही है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा ही है. बट व्हाट आई एम सेइंग, यू आर मोर, यू कैन डू मोर देन दैट. आप ज्यादा समझदार हैं उससे. सो गो टुवर्ड्स योर बॉडी, अपने शरीर बता की. देता है. हाँ जी. गूगल तो अगर कफ के लिए भी जाएंगे ना तो वो उसका लास्ट में बोलेगा इट कुड बी कैंसर आल्सो. तो प्लीज वहां पे आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे. तो अपने बॉडी की तरफ में इस पे भरोसा कीजिए. लाखों सालों से हमारे ह्यूमन बॉडी ने कोई बीमारी क्रिएट नहीं की. उसको इसका मतलब मालूम है किस बीमारी से कैसे निकलना है. सिर्फ इसको अपना वो क्या कहते हैं वो गद्दी दे दो. शरीर से रिकवर करना आपके शरीर का काम है, आपका काम नहीं है. मगर उसको तो हमने लाचार बना दिया है. तो उसको लाचारी से निकाल दें, वो किसी भी बीमारी से रिकवर कर जाएगा, निकल जाएगा. दिस इज 100% गारंटीड. रेस्ट किसी चीज की गारंटी नहीं, आपके शरीर की पूरी गारंटी है. ये समझिए. तो गिव योर बॉडी अ चांस. एक चांस, एक मौका दीजिए. Yes, I really want to do this, and I thought something is missing because 26 years अगर एलोपैथी मेरे को ट्रीट नहीं कर पाया, इतना फिजियोथेरेपी ट्रीट नहीं कर पाया, I'm sure there is something which is missing, which is the catch which I've got now. Thank you very much. God bless you, Swamiji. Anybody else? कोई और Swati, question? I think your question has been already answered. Is this useful for varicose veins and leg pain? So, Srishti, ma'am, you can ask your question. Please unmute yourself. Yes. Good evening, sir. Good evening, Namaskar. बोलिए. नमस्कार. Sir, I developed COVID, and after COVID, my body has become very weak. Abhi recently, 2 weeks prior, I went for a gallbladder surgery. Mhm. So, sir, So- may I start this class? Because abhi to Well, I am just on. Yes. देखिए, see. Sir, I have developed arthritis also. That was doctor says that is a autoimmune disease, and it can't be cured and everything. See, autoimmune disease can easily be cured. Very easily can be cured. But मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें. There are 2 things that I want to talk about here. कि weakness is a common phenomena that the whole humanity at large is experiencing. ये आप देखेंगे कि बच्चे भी वीकनेस महसूस कर रहे हैं. सो इसको मैं कहां से रिलेट करना चाहता हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया इन योर सेल. आपके सेल के अंदर एक चीज होती है पावर हाउस. माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल होता है. ये शरीर में किसी जमाने में लाखों सालों पहले, बल्कि करोड़ों सालों पहले, ये ह्यूमन सेल के अंदर घुस गया. ये बैक्टीरिया जैसा पहले हुआ करता था, वो ह्यूमन सेल में घुस गया, और वो उसकी वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एनर्जी का प्रोडक्शन होता. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कमाल की चीज है. ये डिमांड के हिसाब से अपने आप को बदल देती है. तो पहली बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी ह्यूमन बॉडी के अंदर, या इसका फंक्शन ह्यूमन बॉडी के अंदर पिछले 100 सालों के अंदर हमने देखा डिविएट हो गया. अब क्या करेंगे? कौन सी चीज खा के आपको एनर्जी मिल जाएगी? आपका शरीर अगर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा किसी चीज को, तो भूल जाइए, उसको एनर्जी नहीं मिलने वाली. ठीक है ना? और आखिरकार क्या कहेंगे? हर चीज में यही बात कहते हैं ना, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा तो पेसमेकर लगा लो जी. तो आप पूरा बदल लो जी, सारा का सारा करंट ही लगा लो अपने अंदर एनर्जी के लिए. घुटने खराब है, घुटने बदलवा लो. लिवर खराब है, लिवर ट्रांसप्लांट करा लो. किडनी खराब है, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो. तो मतलब ठीक तो कुछ करते नहीं भाई. ठीक करने का तो आपने कुछ समझा ही नहीं कि किसी चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है.
एक चीज है, कुंभक करना जैसे ही शुरू करेंगे, पहली चीज, द फर्स्ट डे व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज हाई एनर्जी। पहले दिन, फर्स्ट डे, आप कहेंगे पहले नहीं कर पाते थे काम, अब कर पा रहे हैं। और एक नहीं है, एक एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, हजारों एग्जाम्पल है हमारे पास, सैकड़ों नहीं बता रहा, हजारों एग्जाम्पल है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ? कुंभक करते ही आपके माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी अच्छी हो सकती है, जो कि किसी मेडिसिन से नहीं हो सकता। किसी फूड को भी आपका शरीर कितना हजम कर पा रहा है। एक बात बताइए, आपके पूर्वज याद है, दादा दादी, उनको अच्छा भोजन मिलता था? आपको अच्छा भोजन मिलता है? सर उनको आपके मिलता था। दादा नहीं, आपको मिलता है। वैरायटी देखो जरा। So उनको variety तो, nahi, but they used to get pure food. We are getting all pesticides and everything in our food. मुझे एक बात बताइए, जो गांव के रूरल इलाके में रह रहे होते थे, जब उपज होता था तो उतना ही मिलता था उनको, ठीक है? उनको ऐसे ही मतलब इतनी चीजें जो कि आप कभी भी कुछ भी खा सकते हैं, वो उनको नहीं मिलता था। हाँ, आप कह रहे हैं प्योरिटी, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग इट। अभी हमें समझ में आ रहा है कि हमने गड़बड़ कर दिया। But tell me, the availability of food, the variety of food available to them was much less. मगर उनके अंदर डेफिशिएंसी कुछ भी नहीं आती और कुछ भी नहीं थी। आप इतनी सारी चीजें, अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्टर आपको 4 विटामिन लिख के देता, उसके बाद भी डेफिशिएंसी हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कहीं गलत देख रहे हैं। किसी का कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम खिला देते हैं। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। कैल्शियम खिला के किसी का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं हुआ आज तक, एक भी एग्जांपल नहीं है, क्योंकि गलत देख रहे हैं। बल्कि उससे ब्रेस्ट कैंसर के चांस 200% बढ़ जाता है रेगुलर कैल्शियम खाएं। इसका मतलब गलत देख रहे हैं। कहां गलत देख रहे हैं? आपके बॉडी का एब्जॉर्बिंग स्ट्रेंथ, एब्जॉर्ब करने का स्ट्रेंथ कम हो गया है, उसको कैसे बढ़ाओगे? आप केवल दाल रोटी पे पूरी जिंदगी गुजार सकते हो, कोई भी कमी नहीं आएगी आपके बॉडी में, क्योंकि आपका शरीर सब कुछ बनाने में सक्षम है। प्रोटीन बाहर से शरीर नहीं लेता, हमेशा बनाता है अपनी जरूरत के हिसाब से। मगर आपको गलत पड़ा है, बाहर से प्रोटीन लो, उसकी वजह से किडनी डिजीज, कैंसर और पता नहीं यूरिक एसिड ये सब बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि पहला पार्ट कि हमें सही जगह पे देखना पड़ेगा, है ना? सही जगह पे देखना पड़ेगा। वो सही जगह कहां क्या है कि आपके बॉडी का एब्जॉर्प्शन ठीक है, आपका बॉडी क्या यूटिलाइज कर पा रहा है जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका बॉडी कहीं रिस्क में तो नहीं है। आपने केमिकल डाल दिए तो बॉडी रिस्क में आ जाता। तो पहला पार्ट क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत चीजों को लेके यूज नहीं कर पा रहा हमारा शरीर, है ना? तो यूज नहीं कर पा रहा और रिस्क में आ रहा है, तो हमेशा यूज करने से कतराएगा। आपके घर में खतरा है तो आप दरवाजे बंद कर देते हो। सेलुलर सेल्स के अंदर खतरा होता था, सेल्स दरवाजे बंद करता है। इसे कहते हैं इंटॉलरेंस, या फिर इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस आजकल बहुत हो रहा है, टीएसएच बहुत बढ़ रहा है, T3 T4 की कमी आ रही है, थायराइड की प्रॉब्लम जो आ रही है। क्यों? क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा। तो रिस्क बहुत ज्यादा होने पे विसरल फैट, यानी शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो अपनी खिड़कियां और दरवाजे जो है फैट डिपॉजिट करके बंद कर देता है। इसे कहते हैं विसरल फैट डिपोजिशन होता है। तो आपका बॉडी किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करने की तरफ में जाएगा, बल्कि बचाने की तरफ में जाएगा। तो इम्यून सिस्टम या इम्यून रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा आपकी बॉडी बढ़ा देती है। अब कितनी देर तक किचन बंद रखोगे ये बताओ? खतरा आता है घर में तो सबसे पहले किचन बंद होता है, मगर कितनी दिन किचन बंद रखोगे? लंगर कितने दिन बंद रखोगे? नहीं खाएंगे लोग, मर जाएंगे। तो आपके सेल्स को तो खोलना पड़ेगा ना, उन सबको इस्तेमाल करने के लिए। जो वो खोल रहा है, मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स को बढ़ा रहा है। मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स इस तरीके से चलते हैं, ऑपोजिट। इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स कम होगा, मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स बढ़ेगा, इम्यून रेस्पॉन्स कम होगा। तो मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स बढ़ाने की कोशिश करता, फिर आप एक गोली खा लेते हो, फिर इम्यून रेस्पॉन्स बढ़ जाता। तो बार बार इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ने को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। मगर इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक कैसे? अगर बॉडी का टॉलरेंस आप बढ़ा देंगे तो ये इम्यून रिस्पॉन्स का बढ़ना
जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि बॉडी अब टॉलरेट कर पाएगी खराब सिचुएशन को, तो इतना ज्यादा घबराएगी नहीं। उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म को उठने का मौका मिलेगा, आपकी बॉडी में रीजनरेशन के फैक्टर्स बढ़ेंगे, तो वो ठीक हो सकता। दूसरा पार्ट यूरिक एसिड है ना, इसी के अंदर हिस्टामिन इंटॉलरेंस भी आता है, इंसुलिन इंटॉलरेंस भी आता है, और भी बाकी हार्मोन्स के इंटॉलरेंस भी आते हैं, तो बहुत कुछ आ जाता है। दूसरा पार्ट बता, दूसरा पार्ट आ रहा है कि बॉडी ना 2 तरीके से काम करता है। ये हमेशा अपना एक बैलेंस बनाता है, जिसे कहते हैं एसिडिटी और एल्कलिनिटी का बैलेंस बनाता है। एसिड फैक्टर आपके बॉडी में और अल्कलाइन फैक्टर बॉडी में ना, ये सर्केडियन रिदम यानी टाइम के हिसाब से बढ़ते घटते रहते हैं, और ये बैलेंस बना के रखते हैं। पिछले 100 साल में देखा गया है कि यूरिक एसिड ब्लड के अंदर ह्यूमन बीइंग का ऑलमोस्ट 100% बढ़ चुका है। 100% बढ़ चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? तो आपको समझना पड़ेगा, जब भी बॉडी यूरिक एसिड बढ़ाती है, उसके बाद बॉडी इसको बैलेंस करने के लिए अपना फैट का कॉम्पोजिशन या फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ाती है। यूरिक एसिड बढ़ता है तो फैट बढ़ता है, उसको बैलेंस आउट करने के लिए। तो आज के टाइम पे अगर यूरिक एसिड हमेशा बढ़ता रहेगा, ऐसे मान के चलिए आप काम करते रहेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर फटीग आता जाएगा। तो बॉडी के अंदर हम उसको रेस्ट करने का मौका नहीं दे रहे हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण ओवर न्यूट्रिशन। हम बार बार बॉडी को भोजन सप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए डिजाइन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमेशा बढ़ा हुआ है, ह्यूमन ब्लड में आज के टाइम पे मिलेगा। दूसरा रीजन इसका है कि जब भी आप फूड के अलावा कुछ भी डालेंगे तो ये उसको खत्म करने के लिए यूरिक एसिड बढ़ाता है, यानी मेडिसिन का इनसेसेंट इस्तेमाल की वजह से यूरिक एसिड बढ़ रही है। तीसरी चीज, प्रोटीन अगर बॉम्बार्डमेंट करेंगे बॉडी को, क्योंकि प्रोटीन बॉडी को, ह्यूमन बीइंग को प्रोटीन कम जरूरत होती है, शरीर सारा प्रोटीन खुद बनाता है। बाहर से प्रोटीन अगर ओवरलोड करेंगे तो क्या होगा? हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो इसको कहीं पे आप देख लीजिए, इसके ऊपर काफी काम भी, स्टडी भी हो गया, और अब मानने लग गए कि ज्यादा प्रोटीन खाने से हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन होगा और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं कर पाएगा, यानी कि बैलेंस आउट करने का फैक्टर ही खत्म हो जाता है। तो यूरिक एसिड जब बढ़ा रहेगा आपकी बॉडी में, तो इसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, जो कि जॉइंट पे डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं, जो कि आपके प्लाक में डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्रिस्टल रिस्क होता है बॉडी के लिए। यहां पे ब्लड के क्लॉट्स बनने के चांस ज्यादा होते हैं। हार्ट अटैक इसी वजह से होता है। हार्ट अटैक कोई भी एथेरोस्क्लेरोसिस से नहीं होता, ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होता है। ब्लॉकेजेस अच्छे होते हैं हार्ट के लिए, जितने ब्लॉकेजेस होंगे हार्ट में उतना हेल्दी हार्ट होगा। मगर यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेमेशन की कंडीशन बढ़ जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लड अंदर ही अपने को बचाने के लिए गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो क्लॉटिंग हो सकती है। और ये जो क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं आपके जॉइंट्स में, इसी को आर्थराइटिस कह रहे हैं, गाउट कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मैंने बता दिया क्यों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है। अब मैं ये बता रहा हूं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आपके बॉडी में ज्यादा होगी तो ही आर्थराइटिस होगा, तो ही गाउट होगा, है ना। अगर इम्यून डिसऑर्डर होगा तो फिर आपके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन, है ना, रूमेटॉइड की कंडीशन आती है, जिसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं जी। तो इसमें सबसे मेजर रीजन ये है कि आपके बॉडी का डिटॉक्स फैक्टर अगर हम इंप्रूव कर दें तो क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन धीरे धीरे करके हैंडल हो जाती है। क्योंकि देखो, उससे बचने के लिए भी आपके बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए। एनर्जी बढ़ाने का एक तरीका, जैसे मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी अगर आपको बढ़ाना है तो कुंभक का उसके साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी बढ़ेगी, आपका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स अच्छा होगा, इम्यून रिस्पॉन्स कारगर होगा, और उसके बाद में फिर दूसरा फैक्टर मैंने बताया कि यूरिक एसिड के फॉर्मेशन जो कि अपने को बचाने के लिए हो रही है किसी ना किसी तरीके से, टॉलरेंस बढ़ने के कारण वो कम होगा।
आपका डिटॉक्स फैक्टर अच्छा होगा, क्योंकि शरीर से बाहर भी कुछ निकालना है तो प्रेशर डालना पड़ेगा निकालने के लिए। तो कुंभक करते हैं पसीना आने लग जाता है। क्यों? बैठे बैठे क्यों पसीना आने लग गया? क्योंकि शरीर से कुछ चीजें जो जरूरी नहीं थी वो निकलनी शुरू हो गई, और जो जरूरी है वो इस्तेमाल होनी ज्यादा शुरू हो गई। जैसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स आपके बॉडी का अच्छा हो गया। तो इससे आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये कंडीशन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। शुरुआत में ज्यादा तकलीफ किसी को है तो फिर कुछ नेचुरल सपोर्ट ले लें। कोई भी मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं होता, ट्रीटमेंट आपकी बॉडी ही करती है। सारे मेडिसिन, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो जड़ी बूटियां हो, नेचुरल हो, वो सब सपोर्ट है बाहर से बॉडी को। तो बाहर सर, से तो फिर सपोर्ट अभी ले जो लीजिए। 2 हफ्ता सर, ये जो अभी 2 हफ्ता पहले मेरी सर्जरी हुई है गॉल ब्लैडर की, तो फिर आई कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम? हाँ हाँ हाँ, बल्कि जरूरी है गॉल ब्लैडर का। देखिए, गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? फैट को आपके बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना। जो फैट का, जो कोई भी ऑयल हो गया, फैट हो गया, वो हमेशा गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल सॉल्ट होता है उससे एमल्सिफाई होके शरीर के अंदर इस्तेमाल होता। तो अगर गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है, हालांकि बाइल तो निकलता होगा, मगर वो प्रोसेस में बाधा आ गई है, तो इसीलिए फिर रेस्ट्रिक्शंस हो जाती है ना। मगर अगर आप कुंभक करेंगे, अपने बॉडी को सपोर्ट देंगे, तो और जरूरी है सपोर्ट देना। अभी देखिए, जब कोई चीज आपके अंदर कमी कर दी जाती है तो बॉडी को सपोर्ट की और दरकार या जरूरत पड़ती है। कुंभक वो तरीका है जिससे आपके अंदर फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। तो कोई भी आपकी रेस्ट्रिक्शंस जो भी है ना, आप देखेंगे अगर आप कभी लेवरेज भी लेंगे तो आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो अगर ऐसा कुछ किया गया है तो शरीर को पहली चीज रिहैबिलिटेट करना, वापस वो स्ट्रेंथ देना जो कि उसके पास में उस प्रोसीजर के कारण वीक हो गया, और दूसरा सपोर्ट देना, ये और नेसेसरी हो जाता है। तो वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ये प्रोसेस, आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ, मेरे को नी प्रॉब्लम है और डायबिटीज भी है। डायबिटिक का भी टेस्ट करवाया, 164 फास्टिंग है, और बाद आफ्टर मेल 148 है, और बीपी मेरा 140 और 90 रहता है। बीपी आपका ठीक है, देखो शुगर भी ठीक है, बीपी भी ठीक है। अब दवाइयां ले रहे हो, उसकी जरूरत एक्चुअल में है नहीं। अच्छा। आपका बीपी कितना होना चाहिए? आपकी एज के हिसाब से, जितनी भी आपकी हाँ, एज है उसमें मेरी 110, हाँ 60 है ना, तो आपका 170 तक बीपी ठीक है। अच्छा। हाँ, और जो भी आपकी एज हो ना उसमें 110 जोड़ दीजिए, अच्छा, वो आपके लिए नॉर्मल रेंज है। अपर रेंज जो आ गया वो नॉर्मल रेंज है, तो इसीलिए आपका तो बल्कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फिट है, कुछ भी नहीं है। शुगर लेवल और भी जो हम नापते हैं, शुगर लेवल हाँ, कभी भी, शुगर खराब नहीं होता बॉडी के लिए। पहली बात तो जो नंबर आप बता रहे हैं, कोई ना कोई दवाई ले रहे होंगे, तो दवाई लेके ब्लड में तो शुगर आप कम करते हो, मगर ब्लड का शुगर जाता कहाँ है दवाई लेके? फिर बराबर। कहाँ जाता है बताइए? आप तो ब्लड में शुगर नापते हो ना, हाँ, आपने दवाई खाया, ब्लड का शुगर कम हो गया, बराबर। तो गया कहाँ? शरीर में अंदर ही। अंदर गया। अब वो जिस ऑर्गन में जाएगा उसको नुकसान करेगा, बराबर। करेगा ना? और करेगा किडनी करेगा। करेगा, ठीक। किडनी में घुसेगा, किडनी में नुकसान करेगा। नर्वस सिस्टम में जाएगा, न्यूरोपैथी करेगा। आंखों में जाएगा, रेटिनोपैथी करेगा। लिवर खराब करेगा, बाकी ऑर्गन्स खराब कर, हार्ट को नुकसान देगा। तो ये दवाई देके शुगर को कम करना ना बहुत खतरनाक है। अच्छा। है ना? और नी उस- प्रॉब्लम, हाँ नी हाँ मैं नी बता प्रॉब्लम रहा भी हूँ। है। हाँ मैं बता रहा हूँ, नी प्रॉब्लम। देखिए, हाँ, हाँ देखिए, एक चीज है जिसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से अब समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे शरीर में ना कमर के नीचे का हिस्सा, इसे कहते हैं वात का हिस्सा है। ये आपको चलाता है, चालन, चलना, इसको वात का पक्ष कहते हैं। दूसरा पार्ट कमर से छाती तक का हिस्सा जो है, ये पित्त का हिस्सा होता है। यहाँ पे खाना पचता है, यहाँ पे हमेशा ये गर्म रहेगा, तो ये हीट प्रोड्यूस भी करता है, मेटाबॉलिज्म भी करता है। इसी एरिया में आपका हार्ट भी है,
यहीं पे ब्लड का फॉर्मेशन भी लिवर में होता है। तो ये पित्त का पक्ष है और छाती से ऊपर कफ का पक्ष होता है। तो वात का पक्ष उम्र के साथ में आप देखेंगे कि 24 साल तक जो बच्चा होता है उसकी वो बच्चा जो है वो कफ प्रधान एज में होता है। 24 के ऊपर पित्त प्रधान एज शुरू हो जाती है। 24 में 24 जोड़ दीजिए, 48 के बाद में फिर वात प्रधान शुरू हो जाता है पक्ष। तो ऐसे में उम्र के साथ साथ दो चीजें होती हैं, समझिए। एक छोटे बच्चे को टच करो और एक बूढ़े को टच करो, छू के देखें क्या फर्क महसूस होगा। छोटा बच्चे का शरीर गर्म होता है, एक उम्र दराज व्यक्ति का शरीर ठंडा होता है। तो उम्र के साथ आपने खोया क्या? शरीर की गर्मी खो दी, शरीर की गर्मी खो दी, जिसको हम जठराग्नि कह सकते हैं, तारेपत्य अग्नि कह सकते हैं। अगर शरीर की हीट प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी, मेटाबॉलिक हीट भी कहते हैं इसको, तो मेटाबॉलिज्म तो उम्र के साथ में कम होता ही है। हमको क्या करना चाहिए, है ना? मेटाबॉलिज्म या फिर इस तरीके की चीजें उम्र के साथ कम होती हैं, मगर हमारी इच्छा वो 16 साल वाली इच्छा ही रहती है। इच्छा को भी हमको उस हिसाब से नीचे देना चाहिए। हम कितना भोजन करना चाहते हैं वो इच्छा वैसे ही है जैसे कि 24 साल में, तो उसको भी कम करना चाहिए। इसीलिए लाइफस्टाइल मेजर्स जो हैं वो जीवन में लाना बहुत जरूरी है। उम्र के साथ में कैसा भोजन करना है ना, कितना भोजन करना, इसका ये व्यवहार में लाना चाहिए, जो कि हम नहीं लाते। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आप अपने शरीर की गर्मी को बरकरार रखें या बना के रखें तो क्या होगा, उम्र के साथ साथ भी आपको वो प्रॉब्लम कम आएगी जो कि नेचुरली आती है, वो कम हो जाएगी। ऐसे में मेटाबॉलिज्म, अगर शरीर का हीट अगर कम होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किस एरिया को होगा? कमर से नीचे। इसी को आयुर्वेद में कहते हैं वात दोष। जब भी शरीर की गर्मी कम होगी तो कमर से नीचे की प्रॉब्लम शुरू होती है, और शरीर में रंगत भी जो है ना वो सांवले कालेपन की तरफ में ज्यादा जाएगा। उम्र के साथ आप देखेंगे कि शरीर में थोड़ा कालापन आना शुरू हो जाता है। एक बच्चे का सफेद पना होता है क्योंकि कफ पक्ष बहुत ज्यादा है। जवान का थोड़ा लाली में होगा और बुढ़ापे का थोड़ा कालीमा में होगा, काली में होगा। तो अगर शरीर में थोड़ा हीट प्रोड्यूस करें और थोड़ा सपोर्ट दे बाहर से, क्योंकि वात का इलाज क्या है? वात का इलाज क्या है? आपका पहले शरीर की गर्मी अच्छी होनी चाहिए, तो वो जो पक्ष वीक हो गया है उसमें सपोर्ट मिल जाता है। वही हीट जो है मेटाबॉलिक हीट भी होता है, उसी से रीजनरेशन होता है बॉडी में। कोई चीज नई बनती है, जब खाना पचेगा ठीक से तभी तो बनेगा। तो वो पचने का प्रक्रम भी हीट से ही होता, पित्त से ही होता, जिससे कि कोई चीज नई बनेगी। तो कुंभक करेंगे ना तो हीट बढ़ जाएगी, डाइजेस्टिव पाचन अच्छा हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, रीजनरेशन शुरू हो जाएगा, तो घुटने की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ठीक है? मेरे लिए हाँ बोलिए। अष्टांग आसन चिकित्सा बराबर रहेगी? हाँ, यही है इसी चीज के लिए, घुटने के लिए, कमर दर्द, न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जितने भी हैं उसके लिए यही प्रोग्राम है। और बाकी किसी को मल्टीपल इश्यूज हैं तो अपना नंबर छोड़ेंगे, कोई आपसे बात करके आपकी सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, फिर सही प्रोग्राम की तरफ में आपको डायरेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो सर। नमस्ते गुरुजी, जरा मेरे हस्बैंड बोलते हैं, सुनिए ना प्लीज। हाँ हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते 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 नमस्कार, बोलिए बोलिए। मेरे घुटनों का प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम। अभी तो घुटने के बारे में ही बताया अभी तो घुटने के बारे में ही बताया कि घुटने का प्रॉब्लम अगर ठीक करना है तो दर्द की दवाई लेके तो ठीक नहीं होने वाला। ये घुटने बदलवा के प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क है ना। वाजपेयी साहब के घुटने बदलवाए गए तो बेचारे चलना भी बंद हो गया, उसके बाद तो फिर ऊपर ही चले गए वो तो बदलवा के कितना सूट करेगा कितना नहीं, वो जो भी है उसको ताकत देंगे ना तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो वही जो अभी घुटने हैं उसको ताकत देने का प्रोग्राम ही है ये।
हेलो स्वामी जी, चलते चलते मैं सोहेल घुटना बोल रहा हूँ। क्रॉस दिखता है लोगों को। मना नहीं कर- एक मिनट चलते सोहेल, एक चलते मिनट, देविका बोलिए। All right. Swamiji, agar if somebody had a brain stroke and there was no reason found behind it, then how does this Ashtanga Chikitsa be helpful for that person? See why brain stroke happened. चालीस है तुमसे If you go to, I have told you, if there is a risk in the body, what will the blood do? It will become thick to protect itself. Yeah. When there is any kind of a bruise or some kind of mishappening happened and the blood is coming out, what will the body do? It will create blood clot through which the outflow of blood will stop and there will be a regeneration in that area, isn't it? So what is clotting or thickening of blood? It is a protective mechanism of your body. But why it is happening inside the body? Because there might be some risk inside the body. So what is the risk inside the body? There can be many risks. One of the major risks is putting chemicals inside the body. If you put chemicals inside the body, even wrong kind of food will create risk inside the body. And how will the body protect itself? By thickening of blood. Now this thickening of blood may cause at a place where there is some kind of inflammation or injury inside. And as I said, uric acid creates crystals, with that crystal actually can cause some kind of an inflammation and bruise inside the body. It can be in the brain, and the blood is anyway thickening. It will immediately cause a clot, and that is why. So, how will you, first of all, when there is a clot inside the body, a particular part of the body gets damaged, which is related to that area. Now, the whole activity and the damage can be recovered, completely recovered. If you again create an activity of blood flow in that particular region, and that can only happen by creating an internal regulated pressure. Now, by increasing the tolerance of the body, you will see the thickening will not happen. So it will reduce the risk in future. At this point of time, what is given is Ecosprin or any kind of a blood thinner. Yeah. Now, by using blood thinner throughout your life, you will see the person will always be in a fatigue situation. So that is not a right approach. If you increase the tolerance of the body, you will not have to take the blood thinners, and the energy level of the body will increase and the regeneration will happen. So it can be recovered 100%. Right? तो इस तरीके से ये बहुत हेल्प करेगा. हाँ जी सोहेल, आप बोलिए. जी स्वामी जी, मैं सोहेल बोल रहा हूँ हैदराबाद से. आपका वेबिनार बहुत अच्छा लगा, बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही एजुकेशनल था. माय प्रॉब्लम इज के आई एम एक्चुअली फॉर द लास्ट 9-10 इयर्स पहले मैं जिम करता था, बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग वगैरह. तो उसके बाद पता नहीं क्या इंजरी हुई जिसकी वजह से मेरा लेफ्ट साइड जो है ना पूरी तरह से लूज हो गया, लिम्ब. बट उसका पावर स्ट्रेंथ कम नहीं हुआ, लेकिन लूज हो गया. तो मैं जब चलता था तो वो एसिमेट्रिक दिखता था. और उसके बाद भी मैं कुछ दिनों तक कंटिन्यू करने की वजह से एक मेरी नर्व पुल हो गई फ्रॉम माय बैक, which has stopped me from doing exercise. So until now I'm not doing exercise. लेकिन मेरी बॉडी में हर चीज बराबर है, बट स्ट्रेंथ भी बराबर है, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि एसिमेट्रिक है मेरी बॉडी. हाँ, समझ गया. राइट. So, और एक मैं आपको बता देता हूँ क्या करना चाहूंगा. सॉरी, और एक चीज ऐड करना चाहूंगा. मेरे जो लेफ्ट साइड में जो इफेक्टेड एरिया है, वो वाला एरिया मेरा कान, मेरे आंख, मेरे लिप्स वगैरह भी एक टाइम पे इफेक्ट हो गए थे, थोड़े से इम्बैलेंस हो गए थे. अभी लेफ्ट साइड थोड़े थोड़े ना व्हाइट हेयर आ रहे हैं लेफ्ट साइड ही, सिर्फ हाथ पे, पैर पे और वो दाढ़ी में. समझ गया. मैं आपको बता देता हूँ. मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, तो फिर मुझे ये चीज मालूम है. एक्चुअली मैं क्या होता है कि इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर पीपल हु आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई कर रहे हैं या फिर जैसे पावर लिफ्टिंग किया या वेट लिफ्टिंग जैसा कुछ भी किया. Even people who are into doing some kind of a vigorous activity like aerobics हो गया, Zumba हो गया, or even people who are doing Hatha yoga, I have seen कि उन सब में कहीं ना कहीं alignment उनकी बॉडी का बिगड़ जाता है, and they keep on
they carry on because there is no system where after some kind of a deviation you create a alignment back. देखो गाड़ी भी हमारी खराब जगह पे जाती है तो भी हम व्हील अलाइनमेंट करवा देते हैं, लेकिन हम अपने बॉडी को अगर बहुत ही स्ट्रेसली यूज करते हैं तो हम अलाइनमेंट नहीं करते उसके बाद। बहुत सारे स्पोर्ट्स के लोगों को अलाइनमेंट खराब है। बॉडी में बेसिकली 3 अलाइनमेंट आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, खास करके जो भी बॉडी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनको आफ्टर एक्टिविटी अलाइनमेंट एंड कूलिंग डाउन, ये 2 चीज है। कूलिंग डाउन के लिए तो सब अवेयर हैं, अलाइनमेंट के लिए कोई मालूम ही नहीं कि कैसे करें। सो देयर आर बेसिक 3 अलाइनमेंट विच इज टू बी डन। ये अखाड़ों में एक्चुअली जानते थे पहले, युद्ध कला में ये पहले किया करते थे। युद्ध कला का ही एक पार्ट हमने इस प्रोग्राम के अंदर डाला हुआ। तो 3 अलाइनमेंट आपको चाहिए, नाभि, कौड़ी, नले, यानी नेवल अलाइनमेंट आपका ठीक होना चाहिए। दूसरा, चेस्ट, रिब केज के नीचे से अगर देखें तो यहां पे एक हड्डी उभरी हुई है, उसे कौड़ी कहते हैं। वो कौड़ी का अलाइनमेंट हमेशा रहना चाहिए, अदरवाइज लंग और हार्ट का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। ठीक है, नाभि अलाइनमेंट की वजह से मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। कौड़ी अलाइनमेंट खराब हुई तो लंग और हार्ट का अलाइनमेंट तो वो बिगड़ जाता है। और तीसरी चीज है स्केलेटल अलाइनमेंट, जो है उसको अगर आपको देखना है तो कमर से नीचे जो जांघें जा रही हैं, जो जांघ नीचे जा रही है, आपको अगर कहीं भी कभी कोई पिक्चर देखी होगी या मूवी देखी होगी तो पहलवान लोग ना जांघ पे ठोकते हैं, या कबड्डी में भी जांघ पे ठोका जाता है। पता है क्यों ठोकते हैं? क्योंकि वो कहते हैं तुम मेरा अलाइनमेंट नहीं बिगाड़ सकते। तो बेसिकली फिजिकल अलाइनमेंट जो है वो कमर के नीचे जो जांघें जा रही है ना उसके ऊपर बड़ा डिपेंडेंट होता है, या इसको आप और दूसरी भाषा में कह सकते हैं स्केलेटल अलाइनमेंट। स्केलेटल अलाइनमेंट, यहां पे मैं इसको आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये केवल स्केलेटल नहीं होता, न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल होता है। तो नर्व पुल जो है ना वो डिसअलाइनमेंट की वजह से होता है। नर्व पुल तो अगर आप रेस्ट करें तो ठीक हो जाएगा, ज्यादा उसको अलाइन करने की कोशिश करें, खींचातानी करें तो वो ठीक नहीं होता, जल्दी और बढ़ जाता। तो अगर नर्व पुल हुआ है, ट्राई टू रेस्ट, नॉट पुट प्रेशर एंड दैट टू अनबैलेंस प्रेशर ऑन योर बॉडी। उस समय अगर आप केवल रेस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बट इट टेक्स 2 to 3 वीक्स, कम से कम वो 2-3 हफ्ते लगा देता है। लेकिन if you are doing physical activity, aligning yourself on a regular basis, if you are aligning नाभि, कौड़ी, नले, तो what you will see कि आप बॉडी को कितना भी vigorously यूज करोगे ना, ये प्रॉब्लम में नहीं आएगा। Because we have lost this science somewhere. Sports injury is increasing day by day. स्पोर्ट्स इंजरी के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि बॉडी का रेजिलियंस अगर आप 50 साल में देखें तो वैसे ही कम हो गया ह्यूमन बॉडी का। तो इसको अगर अपने रूटीन में लेके आ जाए, क्योंकि ये हमने मर्म विन्यास के अंदर ये डाला ही हुआ है तीनों अलाइनमेंट, तो हमें अलाइनमेंट का अगर हम ये काम करने लग जाएं साथ में, देन फंडामेंटल स्ट्रेंथ एंड द टॉलरेंस ऑफ द बॉडी इंक्रीज करें, तो यू कैन टेक लेवरेज विथ योर बॉडी। आप कितना भी इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो द बॉडी विल बी एबल टू रिकवर बैक, गेट बैक इनटू बैलेंस, एंड यू विल सी इंजरीज और प्रॉब्लम्स कम होंगे, है ना। तो अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है ये मेरे साथ में भी होता था जब मैं स्पोर्ट्स में था, बहुत पहले की बात है अब तो। ये मेरे साथ में बहुत होता था, बाद में मुझे ये अपने ही एक्सपीरियंस से पता चला कि अलाइनमेंट करने के बाद ही ठीक हुआ, ऐसे कुछ भी कर लो ठीक नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कायरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट हर जगह गया हूँ, तो आपका कोर्स मुझे प्रोवाइड करेगा सारी ये फिक्स करने में? हाँ, ये चीजें जो है ना इसके अंदर इनबिल्ट है, इस कोर्स के अंदर ही इनबिल्ट है। तो वो अगर जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अलाइनमेंट होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, विद दिस वी क्लोज दिस वेबिनार बिकॉज बहुत टाइम हो गया है, एंड आप लोगों का वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए, अपने ग्रुप में पूछ लीजिए। I was waiting since so long. देखिए वही बता रहा हूं ना मैं, आई विल आंसर यू। अभी क्या है कि बहुत कभी तो वेबिनार क्लोज करना पड़ेगा, यू पुट इट इन द ग्रुप में आप डाल दीजिए, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, यू विल गेट द आंसर। I waited since so long. I have multiple problem and I am like youngster, so please consider me for that. तो मुझे I have told you if you have multiple
multiple problems, somebody will contact you, will talk to you, take down all the problems, and we will analyze it, direct you to the right kind of a program, because we run lot of programs. This is just one program, है ना. अच्छा रहेगा जिनको मल्टीपल प्रोग्राम है, वो मल्टीपल इश्यूज हैं, वो अपना नंबर छोड़ें, चैट बॉक्स में छोड़ें, या ग्रुप में जिस ग्रुप में आप हैं वहां पे अगर आप नंबर छोड़ेंगे तो कोई आपको कॉल करके डिटेल में पूछे आपसे प्रॉब्लम, फिर मेरे साथ में वो शेयर होगा, फिर उसको एनालाइज करके देखेंगे कि क्या फैक्टर्स वीक हैं आपकी बॉडी में, फिर सही प्रोग्राम की तरफ में हम आपको डायरेक्ट करेंगे. वो ज्यादा बेटर तरीका है ना, वो ज्यादा बेटर तरीका. पॉइंट, बट माय कंसर्न इज कि दीस थिंग्स आर क्योरेबल, सो मैं वही पूछना चाह रही थी बिकॉज ऑफ मतलब हाँ बोलिए. आई हैव अ प्रॉब्लम, लाइक मैं जब 4-5 ईयर की थी तब से मुझे स्पेक्स आया, एंड उसके बाद में आफ्टर लाइक फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स इट हैज इंक्रीज, लाइक मेरा सिलेंड्रिकल भी आ गया एंड वो भी 2 पॉइंट समथिंग. सो वन डॉक्टर सेड टू मी लाइक इफ यू डू लेजर सर्जरी विथ योर आई स्टिल यू कांट रीड फ्रॉम सर्टेन डिस्टेंस. एक तो वो बोला उन्होंने. सो इज इट क्योरेबल, लाइक कि मेरा जो सिलेंड्रिकल स्पेरिकल नंबर है वो 0 हो सकता है? देखिए, नंबर सी माय आई इज एन एक्सीडेंटल आई, ओके, है ना, तो ये तो कुछ नहीं हो सकता इसका. लेकिन इफ यू हैव एवरीथिंग नेचुरल देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि इसको हम काफी हद तक रिकवर करवा सकता है. नाउ केवल आंख का रिकवरी नहीं होता. व्हाई द डैमेज इज हैपनिंग, हमको वो जानना पड़ेगा, है ना. इसीलिए डायग्नोसिस इन्वॉल्व होता है इस प्रोग्राम में. और क्या इश्यूज है बताओ, ये बिल्कुल रिकवरेबल है. और बताओ. मैं जब छोटी थी तो मेरा हेड पे स्टिचिंग हुआ था, मतलब ऑपरेशन जैसा ही हुआ था. सो आई डोंट रिमेम्बर, मैं बहुत छोटी थी, लाइक 6-7 इयर्स की होंगी या उससे भी छोटी. सो ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने वहां पे मुझे स्टिचेस लगाए थे, एंड उसके बाद में उस जो हाफ पार्ट में मोस्ट ऑफ माय हेयर्स आर नॉट ग्रोन ऐसा, तो उसकी वजह से लाइक बहुत सारे पार्ट्स में मेरे हेयर ग्रो ही नहीं होते हैं, और जो हैं वो बहुत थिन है. सो एंड द थर्ड वन इज लाइक लास्ट ईयर मुझे मेरा जो नी का जो एक नीचे अपना 2 बोन्स होते हैं, उसमें जो बड़ा वाला बोन था वो ऊपर से थोड़ा सा टूट के डिस्प्लेस होके आगे चला गया था. सो मेरा लास्ट ईयर ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने प्लेट एंड बोल्ट डाल के वो फिक्स किया, एंड उसके बाद में अभी 1 ईयर हो गया है, लेकिन स्टिल अभी भी मुझे वहां पे स्वेलिंग आता है, वो प्रॉपर फील नहीं होता है. एंड उन्होंने बोला था कि आफ्टर 1 ईयर यू कैन गो फॉर कि अब प्लेट रिमूव करो ऐसा. So my concern is already I got like long mark in my leg, and उसके अलावा वो वापस सर्जरी करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर रिपीट होगा. So is it advisable to remove like the plate or what? अगर आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलेगा. जो आपको प्रॉब्लम हो रही है तब तो सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट. कब चलेगा? ऐसा चलेगा तो प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं 100%. मेरी सारी हड्डियां टूटी हुई है, पांव की, कमर की, हाथ की, सब हड्डियां टूटी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हड्डियां टूटने से प्रॉब्लम नहीं होता, इन्फ्लेमेशन होगा ना, तो किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. दूसरी बात, आपका एक तो हार्मोनल बैलेंस ठीक नहीं है बॉडी का. मतलब कैसे पता चला आपको? कैसे पता, आप जो बता रहे हो उसी से पता चला. ओके. हाँ, या आई हैव दिस आल्सो. मेरे को 2-3 और भी हेल्थ इश्यूज है, लाइक अभी लास्ट कुछ मंथ पहले मैंने टीथ में बहुत पेन होता था. देन मैं डॉक्टर के पास गई, देन दे सेड कि आपको विजडम टूथ आ रहे हैं, तो उसके पास वाले जो टीथ है वहां पे कैविटी या ऐसा कुछ ब्लैक स्पॉट्स है वो सब हो गए हैं. सो यू हैव टू रिमूव योर 2 टीथ ऐसा. सो फिर उसके बाद में मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अभी थोड़ा स्टार्ट किया है, तो और भी मेरे को ब्लडिंग हो रहा था, पेन हो रहा था, सेंसिटिविटी, लाइक जो भी टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी हो रही थी. बट आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम लास्ट 2 मंथ आयुर्वेदिक, उससे थोड़ा बेटर हो रहा है. बट आई एम नॉट श्योर कि वो भी मुझे रिमूव करवाना है अभी कि नहीं, तो वो भी एक कंसर्न है. एंड उसके अलावा लाइक फ्रॉम 3 इयर्स
मतलब आई डायग्नोस विद फाइबरडेनोमा एंड उसके अलावा मतलब मेरा जो हेड है वो ऑलमोस्ट लाइक फ्रॉम लास्ट 5 years टू से मुझे बहुत हेड बैक से पेन होता है, समटाइम्स फॉरहेड वाला पार्ट पेन करता है एंड उसके अलावा बैक पेन का भी मुझे इशू रहता है। एंड वो जो और भी सारे जो आपकी एज क्या है बताइए? 26। 26। देखो मल्टीपल इश्यूज हैं और ये सारे इश्यूज ठीक हो जाते हैं। पहली बात तो ये बता देता हूँ, क्योंकि अगर एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा कि ये कैसे ठीक हुआ वो कैसे ठीक होगा, तो फिर उससे कुछ होने वाले, आप ठीक तो होने वाले नहीं। राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द Right. डॉक्टर्स सेड टू मी लाइक दिस इज लाइक, आई वाले ने बोला कि लाइक कि आपको ये कभी ठीक नहीं हो सकता, तीज वाले ने बोला यू हैव टू रिमूव इट, लाइक हर एक डॉक्टर ने नेगेटिव रिव्यू दिए, इसलिए वो स्ट्रेस बिल्डअप हो गया चीजों का बहुत ज्यादा। हाँ, तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स नहीं किया ना, डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं हो सकता, उसके बाद ना वो ब्लैंक था, वहां पे आपको फिल करना चाहिए था ये ठीक नहीं हो सकता मेडिसिन से। राइट, तो आपको कुछ और तरीका ढूंढना चाहिए, फिर मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता तो इसमें क्या नेगेटिव जाने की जरूरत है? मेडिसिन से तो कुछ भी ठीक नहीं होता, वही तो मैं बता रहा हूँ, मेडिसिन से कुछ भी ठीक नहीं होता, तो फिर उससे अगर ये ठीक नहीं होता तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं उन्होंने हाँ, बोला आपको कि आफ्टर ऑपरेशन आल्सो यू डोंट एबल टू सी प्रॉपर्ली फ्रॉम डिस्टेंस, देखिए मतलब ऑपरेशन तो ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, ये तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। राइट अगर आपने शुरुआत से सुना होगा तो मैंने बोला है कि ऑपरेशन ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो आप राइट लेजर सर्जरी करा लोगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मगर एक बात बताइए मुझे, अगर सपोज करो आपके आई में प्रेशर खराब बिल्ड होता है जिसकी वजह से लेंस का शेप नहीं रह पा रहा, तो आप प्रेशर अगर ग्रेडियंट ठीक कर देते हो आई का तो ये ठीक हो जाएगा। कितना आसान है इसको ठीक करना। मगर प्रेशर ग्रेडियंट तो आप दवाई खा के नहीं ठीक कर सकते, सर्जरी से नहीं ठीक कर सकते, वो तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा अंदर से। राइट सो इससे ठीक हो सकता है, पहली बात तो ये। अब मैं कितना समझाऊं, और भी मुझे मालूम है कि आपको और क्या क्या प्रॉब्लम है, मगर उससे क्या हो जाएगा, मैं कितना भी समझा I दूंगा। got your point. I got your point. Right. I got your point. So you join the program, you'll see multiple issues will be taken care. Okay. ठीक है? Okay. Thank you so much. Thank you so much. गुरुजी 2 मिनट। गुरुजी अभी नहीं, बहुत टाइम हो गया अभी। हाँ, आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। गुरुजी मेरा Thank you so much to all the participants. And we will be taking the questions in the webinar group. तो आप लोग kindly अपने questions webinar group में लिख डालें and we will answer it shortly. Thank you so much once again. सांगली एवढे मोठे मोठे ऑपरेशन झाले तुम्हाला छान. Good night. Stay well. Thanking you, Rachna Botra signing off.